सीतापदे सीतापदे राम 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 ராம 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 ராம். நேற்று வந்து நாம பாகவதம் பாண்டவர்கள் சொர்க்க ஆரோகணம் போறாங்க, அதோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு மேல உள்ள பாராயணம் இன்னைக்கு பண்ணலாம். நேற்று வந்து பாண்டவ சொர்க்க ஆரோகணத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு மேல உள்ள கட்டங்களும் படிக்கலாம். ராம 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 ராம். எல்லார் வீட்லயும் பாகவத புஸ்தகம் இருக்கணும். ராம 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 அப்பதான் நல்லது. பாகவதம் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ விஷயத்துக்கு நம்மளுக்கு பாகவதம் உதவும். பாகவதம் இல்லைன்னா அது வீடு எப்படி? பாகவதம் இருந்தா பகவானே இருக்கிற மாதிரி, லக்ஷ்மி மணாலனே அங்கே இருக்கிற மாதிரி. அதனால பாகவதம் வீட்டுல எல்லார் வீட்லயும் இருக்கணும். சரி, நம்ம பாகவத பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. அதாவது யார் சத்தை எதிர்த்து பகவத் பிரயாணம் பாண்டவ சுதானம் இது சம்பிரயாணம் சுனத்தியலம் ஸ்வஸ்தேனம் பவித்ரம் லக்வா ஹரு பக்தி முபைதி சித்திம். எவ்வளவு பலன் பாருங்க. இந்த பாண்டவர்கள் சொர்க்காரோகணத்துக்கு போனதை படிச்சா அதுவும் நம்பிக்கையோட சத்தையை எதிர்த்து உண்மன் பகவத் பிரியாணம், பகவானுக்கு பிரியம் உள்ளவர்களாகிய பாண்டவருடைய இந்த சொர்க்காரோகணம் படிச்சா, பக்தர்கள் மோட்சம் அடைவதை படிச்சா, சுனத்தியாலும் ஸ்வஸ்தேனம் பரம மங்களம் உண்டாகுமா, பவித்ரம் நம்ம பரிசுத்தம் அடைவோமா, நம்ம பாவங்கள்லாம் விளையிடும், லப்தோ ஹரு பக்தி பகவானிடத்துல பக்தி உண்டாகுமா, அதுக்கு மேல என்னன்னா உபைதி சித்தி மோட்சமும் உண்டாகுமா. நமக்கு அஷ்டமா சித்திகளும் கைகூடும், மோட்சமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். வாழ்க்கையில சித்திம்னா எல்லாம் வெற்றி அடையும் நம்ம வாழ்க்கையில. இந்த கட்டத்தை படிச்சா அவ்வளவு விசேஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரி, அதாவது பாகவதம் சாதாரண ஒரு பிரஸ்தான திரயத்துல வந்து சதுஷ்டயமாக இந்த பாகவதத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மகாத்மாக்கள். அவ்வளவு விசேஷமானது பாகவதம். இதனுடைய மகிமை நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்லை. தெரிஞ்சா பாகவதத்தை விட மாட்டாங்க. இதெல்லாம் கிடைக்காத போது நான் அவஸ்தைப்பட்டேன், எவ்வளோ இடத்துல அலைஞ்சேன். பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி தான் எனக்கு சுந்தரகுமார் சுவாமி தான் முதல் எனக்கு பாகவதம் விதை போட்டதே. அவர் வாக்குல பாகவதம் கேட்ட பிறகுதான் பாகவதத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. முதல் பாகவதம் அவர்கள் தான் கேட்டேன், வேற யாருகளும் கேட்கல. முதல் எனக்கு விதை போட்டதே பாகவதத்துக்கு பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி. பாகவதத்துக்கு விதை போட்டதே பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி. பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி தான் ஒரு வாக்குல பாகவத பிரவாகமா வரும், அப்படியே ஸ்லோகமா. அது கேட்க ஆசையா இருக்கும் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா பாகவதம் ஆரம்பிக்கும் போது அவரை ஸ்மரிச்சிக்கணும் கண்டிப்பா. ஆளுங்குடி பெரிவா பாகவதம் தான் அப்படி உயிர். அந்த மகாத்மாக்கள்லாம் ஸ்மரிச்சிக்கணும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணபிரமி அண்ணா பாகவதமே கதியா இருந்தார் கடைசி வரைக்கும். எல்லாருக்கும் நாம சங்கீதத்தினுடைய பெருமையை சொன்னவர் அவர் தான். ஆனா அவர் கடைசியில பாகவதத்தில் தான் அவருக்கு பித்து. யாரு? ஸ்ரீ கிருஷ்ணபிரமி அண்ணா. பாகவதமே கதியாக இருந்தார்கள் அவர்லாம். கடைசி காலத்தோட பாகவதமே தான். அவர் பாகவதத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருந்தார். அதுபோல இவங்கெல்லாம் பரம அந்த பாகவதத்துல ஒரு மயக்கு. அப்படியாப்பட்ட சுகாச்சாரியரே நிர்குணோபி நைர்குண்யோபி பரிநிஷ்டிதோபி, நிர்குண பிரம்மத்துல ரமிச்சிருந்தவர் கூட கட்சியில நிஷ்டையா இருந்தாராம். அதுவும் அப்படியேப்பட்டவரை ஆக்ஷிப்தமதி அவருடைய மனசையும் கவர்ந்து இழுத்து விடக்கூடியது இந்த பாகவதம். கிருஷ்ண பரமாத்மா அவங்க கையை பிடிச்சி இழுத்துருவான்.
அந்த சன்னியாசிகளை கையை பிடிச்சி இருக்கிறது தான் பகவானுக்கு வேலையே. நீ தான் எனக்கு வேணும். அப்படிப்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர்கள்லாம் கையை பிடிச்சி எடுத்துட்டான். அப்ப நம்மள எந்த மொழிக்கு அவன் நம்மள கவராத அந்த பாகவதம். பாகவதம் எல்லாரையும் கவர்ந்துடும். காஞ்சி மகா பெரிவாலேயே அவர் சொல்றாரு, இந்த 13 வயசுலயோ 15 வயசுலயோ அவர் சன்னியாசம் மேற்கொண்டார். இந்த ராசலீலை பாராயணம் பண்ணி தான் பிரம்மச்சத்தை காத்தாராம். அவர் சன்னியாசம் மேற்கொண்டது எதனாலன்னா அந்த ராசலீலை, பாகவதத்தில் உள்ள ராசலீலை படிச்சுதான் அவர் அந்த பிரம்மச்சத்தை காத்தார் அப்படின்னு பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி தன் உபன்யாசத்துல சொல்லுவார். அப்படிப்பட்ட காஞ்சி மகாபெரிவா ஸ்ரீ மகாரண்ய சத்குரு முரளிதர சுவாமிஜி பாகவத பவனமே, அவருடைய பவனத்துல போனா பாகவத பவனம்னே பேரு. அவங்க பாகவதம் தான் கதி. அவருடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாரும் பாகவதத்துலதான் உயிரே அவங்களுக்கு. யாரு? மகாரண்ய சத்குரு முரளிதர சுவாமிஜி. சொல்லவே வேணாம். ஜெயபதக மகாராஜ், அதாவது என்னன்னா இங்க இருக்காரு இப்ப ஜெயபதக மகாராஜ், அவங்க பாகவதம் தான். இஸ்கான்னா ஃபுல்லா பாகவதம் தான். பகவத்கீதை பாகவதம் தான். கிருஷ்ண பக்தி அவங்களுக்கு பாகவதம் தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. பாகவதம் தான் பேஸ்மெண்ட்டே எல்லாமே. அவங்களுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு காரணமே பாகவதம் தான். இது இஸ்கானே அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இந்த பாகவதம்னு உயிரை வர்றாங்களே. ஏன்னா அவன் பாகவதம் அப்படி சுவையுடையது, அவ்வளோ டேஸ்ட். நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா கூட அந்த பாகவத்துல மனசு இழுக்கும். கொஞ்சம் பாகவதம் போய் அனுபவிக்கலாமே, பாகவதம் போய் பார்க்கலாமே, அந்த பிரகலாத் சரித்திரம் படிக்கலாமே, அந்த பரிஷத் சரித்திரம் படிக்கலாமே. அது என்ன ஒரு மயக்கு. அந்த குந்தி ஸ்துதி, பீஷ்ம ஸ்துதி, அந்த கிருஷ்ணனுடைய ராசலை, நவநீத லீலை, அது ஒரு மனசு அப்படியே கவரும். அது தன்னிலை பிடிச்சி எல்லாமே சுவையா இருக்கும். அந்த துருவ சரித்திரம், அம்பரீஷ சரித்திரம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். பிரகலாத் சரித்திரம் அப்படியே ரொம்ப சுவையா இருக்கும். பிரகலாத் சரித்திரம் தான் நம்ம ரொம்ப சுவையா இருக்கும். அஜாமில பாய்க்கணும் நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு நல்லா எரு போட்ட மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றவங்களுக்கு அஜாமில பாய்க்கணும் தான் அப்படியே சிரசு மேல வச்சு கொண்டாடுவாங்க அந்த அஜாமில பாய்க்கனத்தை. அப்படிப்பட்டது பாகவதம். அதனால பாகவதம் யாரை விட்டு வச்சுது? யாரையும் விட்டு உலகத்துல எல்லாரையும் வசீகரம் பண்ணக்கூடியது இந்த பாகவதம். அப்படியேப்பட்ட பாகவத புராணத்தை படிக்கிற பாக்கியம் அடியனுக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிது. நேத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நேற்று என்னன்னா சொர்க்காரோகணத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம் பாண்டவர்கள். இன்னைக்கு அதுல இருந்து 15வது அத்தியாயமா 15 அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். முதல் ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 16வது அத்தியாயம் இப்போ பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. அதாவது உலக சமாதானத்துக்காக நம்ம பாராயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஆனா இதுல நம்மளுக்கு பெரிய பாக்கியம், கிருஷ்ண அனுபவத்தை, இந்த பாகவதத்தை அனுபவிக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்லோகமா படிச்சுட்டு வந்தாவே ஒன்றும் பக்திலாம் வேணாங்க. பக்திலாம் வேணாம். சும்மா பாராயணம் பண்ணே வாயேன், பக்தி வந்துடும். அது சும்மா இருக்கு, அது தூண்டிடும். நம்ம ஒரு ஜடம் மாதிரி படிச்சுனே வாங்க, ஒரு எந்திரம் மாதிரி படிச்சுனே வாங்கலாம். அப்புறமா அது பாகவதம் அந்த ஸ்லோகம் என்ன பண்ணி நம்மள ரமிக்க செய்திடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா பாகவதத்துல பிரியத்தை உண்டாக்கிடும். அப்படியேப்பட்ட பாகவதம் இது எல்லாருக்கும் கிடைச்சது. ஜென்மாந்தரே பவேத் புண்ணியம் ததா பாகவதம் லவேத், கோடி ஜென்ம சமுத்தேன புண்ணிய நைவத லப்யதே. எவ்வளவு வாக்கியங்கள். கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள்ல புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் பாகவதம் அனுபவிக்கணும். பாகவதம் பாராயணம் பண்ணுன்ற என்ன வருமா? ஜென்மாந்தத்துல புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் பாகவதம் படிக்கணும், நெஞ்சில கிடைக்குமா பாகவதம்? இதெல்லாம் ஸ்ரீ அண்ணா சொல்றார். பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி சொல்றார். பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி வாக்குல முதல் கேட்டது அண்ணா நகர் 18th மெயின் ரோடு. அங்க ஒரு அக்ரஹாரத்துல பாகவதம் நடத்துறாங்க. அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் பாகவதம். அந்த அதுக்கு பிறகு பாகவதம் எப்படி விட முடியும்? அதுக்கு முன்னாடி படிச்சதெல்லாம் ராமாயணம் தான். பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி வாக்குல பாகவதம் கேட்ட பிறகுதான் இதுல ஒரு மயக்கு. அவர் பிரவாகமா ஸ்லோகமா வர்ஷிக்கிறாரு. அப்ப பாகவதம் படிக்கவே தெரியாது, ஸ்லோகமே தெரியாது, எனக்கு சம்ஸ்கிருதமே தெரியாது. அப்புறம் தான் 18th மெயின் ரோட்ல வருஷம் பாகவதம் வைப்பாங்க. 18th மெயின் ரோட்ல ஒரு அக்ரஹாரத்துல. அப்புறமா மயிலாப்பூர்ல சாய் சமாதியில வருஷம் பாகவதம் சொல்லுவார் பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார் சுவாமி. அதெல்லாம் விடாம அட்டன் பண்ணுவேன். மூலகல்ல இருந்து 38 F வரும் மயிலாப்பூருக்கு. அதுல அந்த 38 Fல ஏறி 5 ரூபாய் தான் டிக்கெட். அது ஏறி போயிடுவேன். ஜம்முன்னு பாகவதம் போய் கேட்டா 7 நாள் அங்கேயே சாப்பாடு, காலைல சாப்பாடு, மூலப்பாரத்துக்கு போய் அட்டன் பண்ணிட்டா தமிழ்ல ராமனா பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியிட்டாங்களே, அப்போ அந்த புஸ்தகத்தை வச்சு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது என்ன ஒரே தமிழ்ல இருக்கு, ஆனா பார்த்தா எல்லாம் சம்ஸ்கிருதமா இருக்கு. நம்மளுக்கு கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்கும், ஒண்ணுமே புரியாது. சரி ஏதோ படிக்கிறாங்க பிராமணர்கள், மாமிங்கெல்லாம் புஸ்தகம் வச்சுன்னு பாராயணம் பண்ணுவாங்க, மாமாக்கெல்லாம் வச்சு பாராயணம் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் பார்த்தா சம்ஸ்கிருதம் வச்சு படிப்பாங்க. ஒரே ஹிந்தி எழுத்து, ஒண்ணுமே புரியாது. நான் பாட்டு கூட உட்காந்துப்பேன். அதை போட சேர்ந்து நாறு மனம் பெறுவது போல
எனக்கு இந்த அஜ்ஞானி ராமாயணமே லிப்கோ ராமாயணம் படிப்பேன் தமிழ்ல. சான்ஸ்கிரிட் ராமாயணம் சான்ஸ்கிரிட் ராமாயணம் படிக்க தெரியாது. அந்த தமிழ் ராமாயணம் படிக்கும் போதே அது ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் போட்டு அதை படிக்கும் போது மேல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். அப்போ லாஸ்ட்ல முடியும் போது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கும். ஒரு சர்க்கத்துல மேல ஒரு ஸ்லோகம் கூட அது கொஞ்சம் படிப்பேன். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்பிதாம்பரம் நாரதம் பரிவப்ரச்ச வால்மீகர் முனிபங்கவம், அது முழு ஸ்லோகம் படிப்பேன். அப்புறமா பார்த்தா கதையா இருக்கும். அந்த கதையை படிச்ச உடனே அப்ப லாஸ்ட்ல ஒரு ஸ்லோகம் முடியும். இது வாக்படுத்துவமியாத்து பிராமணம் படிச்சா சிறந்த பண்டிதன் ஆவான், சத்திரியம் படிச்சா பூமி பதித்துவமியாத்து வைசிய தன சமிருத்தி உண்டாகும், வைசியன் படிச்சா சூத்திரம் படிச்சா தன்னுடைய குலத்துக்கு அதிபதி ஆகும் அப்படின்னா வரும் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அதெல்லாம் படிச்சு இந்த ஸ்லோகம்லாம் படிச்சா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சிருப்பேன். அப்புறமா தான் பாகவதத்துல நினைய பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி வாக்குல பாகவதம் கேட்கும்போது தான் ஸ்லோகத்துக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்கா அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்லோகம் படிக்கும். அப்ப மாமிகள்லாம் உட்காந்து படிப்பாங்க பாகவத பாராயணம். படிக்கும்போது ஆசையா இருக்கும் இந்த புஸ்தகங்களை பார்க்கும்போது. சரி நம்மளும் ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவேன், ராமனா பப்ளிகேஷன்ஸ்ல போய் இந்த பாகவதம் தமிழ்ல போட்ட பாகவத புஸ்தகம், சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது, தமிழ்ல சான்ஸ்கிரிட் போட்ட பாகவத புஸ்தகம் வச்சுன்னு ஒரு மாமாக்களை வாங்கி கொடுத்தேன். அவர் பர்ஷாவத்துல இருந்து வருவார் அந்த மாமா. அவர் அந்த பாகவத புஸ்தகத்தை கொடுப்பேன். கொடுத்த உடனே இந்த பாகவத புஸ்தகம் நீ படிக்க வேணாம், எனக்கு படிக்க தெரியாது சாமி, நீ படிக்க வேணாம், வீட்டுல வச்சுக்கோ, வீட்டுல வச்சாலே சேமம், தத்கிருகம் தீர்த்த ரூபம் இன்னைக்கு சொல்றேன் ஸ்லோகம், அன்னைக்கு ஸ்லோகம் தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. அங்க சகல புண்ணிய திட்டங்களும் வந்து சேர்ந்துருமா. அந்த பாகவத புஸ்தகம் வீட்டுல வச்சாலே சகல புண்ணிய திட்டங்களும் அவங்க வந்து சேர்ந்துருமா, சகல தேவதைகளும் அவங்க வந்து சேர்ந்துருவோம், பகவானே வந்துருவான். அதனால நீ புஸ்தகம் படிக்கலாம் போதும், அந்த புஸ்தகத்துல 2 புஷ்பம் போட்டு வை, அது 2 புஷ்பம் போட்டு வை, அந்த புஷ்பத்துல விழுந்து சேவிச்சுக்கோ, அது போதும், அது உன்னை படிக்க வச்சிடும் அப்படின்னு அந்த மகாத்மா வார்த்தை இன்னைக்கு சத்தியமாச்சு. அந்த ராமநாமா பப்ளிகேஷன் போட்ட புஸ்தகம் தமிழ்ல இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல படிக்கிறாங்க, என் ஒய்ஃப் படிக்கிறாங்க, அது தமிழ்ல அது வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பெரிய எழுத்து வந்தது, அப்ப சின்ன எழுத்து. அப்போ வந்து என்னன்னா 250 ரூபா அந்த புஸ்தகம் நினைக்கிறேன், 350 ரூபா முதல்ல பெருசா போட்டது. அதுக்கப்புறமா வந்தது கொஞ்சம் சின்னதா 250 ரூபா அந்த புஸ்தகம் அப்போ வாங்கும்போது. அவர் 2 இதுல போட்டாரு. அப்போ இன்னும் சின்னதா 100 ரூபாயில சின்னதா போட்டாரு ராமநாம பப்ளிகேஷன்ஸ்ல தமிழ்ல. அதையும் வாங்கிட்டேன், எதையும் விட மாட்டேன். பாகவத புஸ்தகம்னா அது எந்தெந்த சைஸ்ல போட்டாலும் அத்தனை சைஸ்ல வாங்கிட்டேன், பெரிய எழுத்து சின்ன எழுத்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அது காசு போனா போயும்போது பாகவதம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதம் அந்த மூலப்பாராயண புஸ்தகம் வாங்கிட்டு அவள் என்ன பண்ண அதை வச்சு படிக்க இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது. அப்போ அதுலேயே மூலப்பாராயணம் பண்ணலான்னு சொன்னா அதோட கொஞ்சம் படிக்க வந்தது ஓரளவுக்கு. அதை தமிழ் சம்ஸ்கிருதத்திலே படிச்சுன்னு இருந்தேன். அப்புறமா பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரமா சுவாமி அண்ணா நகர்ல ஒரு தடவை என்ன பண்ணாரு, 2006 2007 தெரியல, அப்போ பாகவதம் வச்சாங்க, எல்லாருக்கும் பாகவத புஸ்தகம் கொடுத்தாங்க. 2010 நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வந்து நெல் கொடுப்பாங்க, அந்த பாகவத மூலப்பாராயணம் அட்டன் பண்ணா நெல் கொடுப்பாங்க, 5 ரூபா காயின் போடுவாங்க, எல்லாருக்கும் தட்சணை கொடுப்பாங்க, நெல் போடுவாங்க. வாங்கிப்பேன், வாங்கிட்டு அங்கேயே பிரசாதம், வீட்டில் போய் பிரசாதம் சாப்பிடுவோம். உட்காந்து அந்த பிராமணர்கள் படிக்கிறத பார்த்துன்னு வாயை பார்த்துன்னு இருப்பேன். எனக்கு தான் படிக்க தெரியாது, வாயை பார்த்துன்னு இருப்பேன், அவங்க படிக்கிறத பார்த்துன்னு அப்படியே இருப்பேன். எப்படிலாம் படிக்கிறாங்க, நம்மளாம் எனக்கு எங்க படிக்க வரும் நம்மளுக்குலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துன்னு இருப்பேன். அதுவும் தமிழ் புஸ்தகம் அதுலயும் சரியா படிக்க வராது. அப்புறமா தான் அவர்கள் அண்ணா நகர்ல அவங்க இப்போ காசிக்கு போயிட்டாங்க, அந்த அக்கரகாலத்துல ஏடி மெயின் ரோட்ல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு அந்த 2010 தான், அந்த டைம்ல தான் எல்லாருக்கும் புஸ்தகம் விநியோகம் பண்ணாங்க, பாகவத புஸ்தகம். கீதா பிரஸ் எடிஷன்ல இந்த பாகவத புஸ்தகம், இந்த பாகவத மூலப்பாராயண புஸ்தகம் வந்து இது இல்லை, அந்த புஸ்தகம் அங்க இருக்கு, அதை நான் அப்புறம் காண்பிக்கிறேன். அந்த புஸ்தகம் இப்போ எடுக்க முடியாது, அந்த புஸ்தகம் உள்ள இருக்கு, அந்த புஸ்தகம் அப்புறம் காமிக்கிறேன். அந்த புஸ்தகம் தான் வந்து முதல் கொடுத்தாங்க 2010. அது ஒரு சான்ஸ்கிரிட். எனக்கு பார்க்கறதுக்கு எல்லாரும் புஸ்தகம் கொடுக்கும்போது எனக்கு மட்டும் புஸ்தகம் வாங்கணும்னு ஆசையா இருக்காதா. ஆனா படிக்கிறவங்க தான் வந்து அதை வாங்கணும், நான் படிக்க தெரியாது. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன், பொய் சொல்லிட்டேன், எனக்கு படிக்க தெரியும் அப்படின்ட்டு. அந்த புஸ்தகம் சும்மா வருதுன்னா, அதுவும் பாகவத புஸ்தகம் சும்மா வருதுன்னா யாருன்னா வேணான்னு சொல்லுவாங்களா. அப்போ கொஞ்சம் எழுத்து கூட்டி படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன். நீங்க படிப்பீங்களான்னு கேட்டாங்க. நான் எழுத்து கூட்டி படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சான்ஸ்கிரிட் பாகவத புஸ்தகம் நான் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்ல தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். தமிழ் பாகவதம் ராமனா பப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்கிற தமிழ் பாகவதம் தான் வச்சிருக்கேன், அதை தான் படிப்பேன்னு சொன்னேன். ஆனா இந்த பாகவதம் படிப்பேன்னு கேட்டா நான் பொதுவா பாகவதம் இதுல பொய் இதான்
அஸ்வத்தாமா ஹத குஞ்சர அப்படின்ற மாதிரி ஆகி போச்சு. இது அஸ்வத்தாமா ஹத குஞ்சரன், அஸ்வத்தாமாவை கொல்லல, அஸ்வத்தாமான்ற யானை அப்படின்ற போது அப்படின்ற கதையாகி போச்சு. நான் பாகவதம் படிப்பேன்னா படிப்பேன், எழுத்து கூட்டி படிப்பேன். எது தமிழ்லயே எழுத்து கூட்டி தான் படிப்பேன், அவ்வளவு ஃபாஸ்டா படிக்க வராது. அப்புறம் அது பொய் தானே, பொய் தான். எழுத்து கூட்டி படிப்பேன். அதைத்தான் இங்க என்ன சொன்னேன், பாகவதம் இந்த பாகவதம் படிப்பீங்களான்னு. எழுத்து கூட்டி படிப்பேன். தமிழ் பாகவதம் எழுத்து கூட்டி படிப்பேன். சம்ஸ்கிருதம் இந்த ஹிந்தி எழுத்து தெரியாது, இந்த சான்ஸ்கிரிட் எழுத்து தெரியாது. இது பொய் தான், பொய் சொல்லிதான் வாங்கினேன். எது பாகவத புஸ்தகம் சும்மா கிடைக்குது, வானான்னு சொல்லுமா பாகவத புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டேன், வாங்கி வீட்டுல கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டா இந்த பாகவதத்தை பார்க்கும்போது ஆசையா இருக்கு. தன பிராமணர்கள்லாம் படிக்கிறாங்க, சில பேர் சன்ஸ்கிருத் தெரிஞ்ச மாமிகள்லாம் படிக்கிறாங்க, நம்மளும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் திருவள்ளியில் வச்சேன். பகவான் திருவள்ளியில் வச்சு எனக்கு எப்படியோ தெரியாது, எனக்கு இது படிக்க வரணும், அவ்வளவுதான். இந்த பாகவத புஸ்தகம் சம்ஸ்கிருதம் எனக்கு படிக்க வரணும், நீ என்ன செய்வே எது செய்வே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்களை ஒப்படைச்சிட்டேன். அப்புறம் என்ன பண்ணேன், தமிழ் எழுத்து இருக்குல்ல, அந்த சான்ஸ்கிரிட் தமிழ் எழுத்து ராமனா பப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டது, அதை வச்சு ஜென்மாத்திய ஜானா எப்படி வரும் அப்படின்ட்டு. இந்த எல்லாம் தெரியாது, கக்கா கக்க அதெல்லாம் தெரியாது. டைரக்டா அப்படி டைரக்டா கோதால இறங்கிடுவேன் தான். டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன், அந்த தமிழ் சான்ஸ்கிரிட்டை வச்சு ஜா ஜென்மாத்திய ஜா இன்ன எப்படி வருது அப்படியே அந்த ஸ்லோகத்தை படிப்பேன். அப்படியே பார்த்தா அது ஹிந்தி எழுத்து சான்ஸ்கிரிட் எழுத்து எப்படி வருது அப்படியே வச்சு ஒரு எழுத்தா வச்சு பார்த்து இப்படி படிச்சா படிக்க முடியுமா, நடக்கிற காரியமா இது இப்படி படிச்சா. ஆனா அப்படி படிப்பேன், அப்படி படிச்சு ஒரு எழுத்தா படிப்பேன். நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்லோகம் என்ன படிச்சு வச்சு பழக்கமாச்சு. ஜென்மாத்தியசி ஏதோ அன்வயாத்தி தரதஸ்ட அர்த்தேஷு அபிக்னேஸ்வராட்டு தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவியே முஹ்யந்தி யத் சூரய தேஜோ வாரி மிருதாம் யதா வினிமய யத்ரத்து சொர்கா முருஷா. இன்னைக்கு மனப்பாடம் அன்னைக்கு மனப்பாடம்லாம் கிடையாது. அன்னைக்கு அப்படியே படிப்பேன், எடுத்து படிப்பேன், படிச்சு பழக்கம். அப்படியே படிச்சு அந்த ஸ்லோகத்தை அப்படியே ஒரு இந்தி எழுத்தா வச்சு பார்த்தேன். இந்த சுழி 2 சுழி 3 சுழி கீழே சுழி வருது, அப்ப 2 எழுத்து ஒன்னா வருது. இதெல்லாம் நம்ம செம்ம குழப்பமாயிடுச்சு. பார்த்தேன், இப்படிலாம் படிச்சா படிக்க முடியுமா? ஒவ்வொரு இப்போ பாகவத மூலப்பாராயணம் தமிழ்ல இருக்கட்டும், இந்த சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கட்டும் ஒன்னா வச்சு படிச்சு பார்த்தா அது நடக்கிற காரியமா? அது ஃபுல்லா படிச்சு முடியுமா? நிறைய குழப்பமா இருக்கு. பார்த்தேன், எனக்கு இது வரல. 2 நாள் கஷ்டப்பட்டேன், 3 நாள் கஷ்டப்பட்டேன், அதை வச்சு படிச்சு போனேன். ஆனா ஆர்வம் இருக்கு, படிக்கணும். புஸ்தகம் வாங்கிட்டோம், பொய் சொல்லி வாங்கிட்டோம். புஸ்தகத்தை எழுத்து கூட்டி படிக்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டோம். அதை படிச்சாகணும். அது என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு எழுத்தா வச்சு இந்த தமிழ் சான்ஸ்கிரிட்டம் இந்த ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட்டம் வச்சு படிச்சு பார்த்து வரல. 3 நாள் ததிக்க தாளம் போட்ட முடியல. அப்பா கிருஷ்ணா, என்னால முடியல கிருஷ்ணா, தயவுசெய்து உன் கருணையினால் தான் நான் படிக்க முடியும். மூகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கம் லங்கையதே கிரிம். மூகம் ஊமை, வாச்சாலம் பெரிய பண்டிதன் ஆயிடுவானா. பகவானுடைய எத்கிருபாதோ, பகவானுடைய கிருபை இருந்தா அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வந்து அசபாஷ் சரி நீ படிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், இந்த புஸ்தகத்தை வச்சு அப்படியே மூடி வச்சுட்டேன். கிருஷ்ணங்களை கண்ணீர் விட்டு உருகனை அழுதேன். நீ என்னை படிக்கை, எனக்கு படிக்கணும், அவ்வளவுதான். இந்த பாகவத ஸ்லோகமா சுந்தரமா சுவாமி அப்படியே வர்ஷிக்கிறார் இல்லையா, அவர் ஐநாவரத்துல ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல மூலபாராயணம் பண்ணார், கூட அட்டன் பண்ணேன். அப்பெல்லாம் மூலபாராயணம் பண்றாரு இல்லையா, அது மாதிரி எனக்கும் மூலபாராயணம் பண்ணணும், எனக்கு இந்த பாகவத பாராயணம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். நீ என்ன செய்வே எது செய்வே தெரியாது, அதெல்லாம் கிருஷ்ண அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு பகவானே குருவாக ஆசிரித்து விட்டுட்டு 3ஆவது நாள் 4ஆவது நாள் அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டேன். அதை நான் தொடர்ந்த, ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா அதுக்கு தொடவே மாட்டோம். ரொம்ப சிரமப்பட்டோம். சும்மா எழுத்துட்டு படிச்சா சரியா வரல. பார்த்தேன் இது நம்மளுக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு அப்புறமா கிருஷ்ணங்களை அழுதால் உன்னை பெறலாமே. சத்தியமான வார்த்தை, நம்ம நம்பாடி உண்மை சொல்றேன். 5ஆவது நாள் புஸ்தகத்தை திறந்து படிக்கிறேன். ஏற்கனவே படிச்சு விட்டேன், முன்னாடி எப்படி இருந்தது அந்த புஸ்தகம், கண்ணை கட்டி காட்டில விட்ட மாதிரி இருந்தது. ஒரே ஹிந்தி எழுத்தா இருக்குது, ஒண்ணுமே புரியல. 5ஆவது நாள் எழுத்துக்கிட்டு படிச்சு பார்த்தா ஏதோ கொஞ்சம் புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது. அப்புறமா பார்த்தா 3 நாள் கஷ்டப்பட்டேன், வரல. 4ஆவது நாள் ஃப்ரீயா விட்டேன். பகவான்களை பிரார்த்தனை பண்ணேன், அவன் அருள் இருந்தாதான் படிக்க முடியும். அப்புறமா பகவான்களை பிரார்த்தனை பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே 5ஆவது நாள் பார்த்தா திறந்து விட்டா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கு. சொன்னா நம்புவீங்களா? என்னடா இதெல்லாம், இது என்ன படிச்சு விட்ட மாதிரி அப்படியே சரளமா படிக்க வந்துடுச்சு. சரளமான ஃபாஸ்டா இல்ல, கொஞ்சமா அந்த எழுத்து புரிய ஆரம்பிச்சது. படிக்க அந்த வார்த்தைக்கு இந்த வார்த்தை அப்படியே ஞானம் விரக்தி ஐஸ்வர்யம் சௌரியம் தேஜ பலம் ஸ்ருதி ஒரு எழுத்தோடனே அந்த ஸ்லோகம் வருது.
ஞானம் உண்டாகுமா வைராக்கியம் அந்த ஸ்லோகம் அப்படியே வருது. ஞானம், விரக்தி, ஐஸ்வர்யம், சௌரியம், தேஜ, பலம், இதெல்லாம் பகவான்கள் இருக்குதான். 39 குணங்கள். அந்த குணங்கள்ல ஒரு குணம் கொடுக்க மாட்டானா நம்மளுக்கு? இந்த படிக்கிற குணம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஞானம், அந்த ஞானத்தை கொடுக்க மாட்டானா? சரஸ்வதி, அந்த வாக்குத்தன்மை அது கொடுப்பான் இல்லையா, படிக்கிற தன்மை, அது ஒரு குணம் தானே பகவான். 39 குணங்கள்ல பகவானுக்கு அது பாருங்க. அப்ப தொட்டவனே அது வருது. ஞானம், விரக்தி, ஐஸ்வர்யம், சௌரியம், தேஜோ, பலம், ஸ்மிருதி, ஞான ஸ்மிருதி, நினைவாற்றல், சுவாதந்திரியம், கௌசலம், காந்திர், தைரியம், பார்த்தம், இது விடுங்க. இதுல ஸ்லோகத்துல இருக்கு. ஓகே, அப்போ பகவான் நினைச்சா என்ன கொடுக்க முடியாது? அதை நம்புறவங்களுக்கு இது ஒரு சின்ன விஷயம், இந்த பாகவத பாராயணம் பண்றது. ஆனா எனக்கு அப்போதைக்கு பெரிய விஷயம். அப்போ நீ பொய் சொல்லி தானே வாங்கி அந்த பாகவதத்தை, அதை சத்தியமாக்குறேன், நீ படிக்க வருவ. உனக்கு எழுத்து கூட படிக்க தெரியும்னு சொன்னல, உண்மையிலே உனக்கு படிக்க தெரியும். அப்புறம் என்னம்னா, எடுத்த உடனே ஃபாஸ்டா படிக்கல, ஆனா ஏற்கனவே படிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கு. ஏற்கனவே என்னடா இதெல்லாம் படிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரளமா படிச்சுனே வரேன். படிச்சுனே வந்து பார்த்தா அப்புறம் நல்லா படிக்க வந்துடுச்சு. அப்புறம் தமிழ் புஸ்தகத்தை எடுத்து என் ஒய்ஃபுக்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். இந்த நீ படிச்சு நீ வச்சுக்கோ, இனிமேல் இந்த சான்ஸ்கிரிட் தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சான்ஸ்கிரிட் புஸ்தகம். இது வந்து அந்த பழைய புஸ்தகம். எனக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கு இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு. பகவானுடைய அருள் எப்படி கிடைச்சது? 5 நாள், ரொம்ப நாள் கஷ்டப்படல, 50 நாள்லாம் கஷ்டப்படல, 5 நாள். 5வது நாள்ல சரளமா படிக்க வந்துடுச்சு. சரளமா படிக்க ஃபாஸ்டா படிக்கல, அப்படியே கொஞ்சம் தடுமாறி. ஆனா அந்த எழுத்துக்கள் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. அது போதுமே, கண்ணை தந்து விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. கண்ணை கட்டி காட்டில விட்ட மாதிரி இந்த புஸ்தகம் நீ கண்ணை தந்து விட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ பாராயணம் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அப்படியே படிக்க ஃபாஸ்டா வந்துச்சு. அப்புறமா நான் சப்தாகம் வைக்க வேண்டியதுதான் வீட்டுல. அப்புறமா ருக்மிணி கல்யாணத்துக்கு தான் எங்கிருந்தோ புடவை வந்துடும், வேஷ்டி வந்துடும், எல்லாம் பார்த்தா புஷ்பங்கள் எடுத்துருந்தோம், பழங்கள் எடுத்துன்னு வந்துருவாங்க. அந்த குப்பியா செய்வாங்களே, அந்த ராதா கல்யாணத்துக்கு குப்பியா செய்வாங்களே, அந்த ஒட்சைகள்ல அந்த அதெல்லாம் வந்துடும். எல்லாம் மாமிகள்லாம் கொண்டு வந்துருவாங்க. தன்னாலே சும்மா சொல்லுவேன், போய் பாகவத பாராயணம் வைக்கலாம் சப்தாகம் அப்படின்னு, எல்லாம் வந்துருவாங்க. வந்துட்டா அதெல்லாம் வச்சு மக்களமா அவங்க பூஜை பண்ணுவாங்க, அவங்க பாடலாம் பாடுவாங்க. மாமிகெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டுல பாகவத பாராயணம் வைப்போம். அப்போ சப்தாகம் நிறைய சப்தாகம் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா நான் ராமாயணம் விட்டுக்கலாமா, ராமாயணம் நவாகமா ராமாயண பாராயணம், அதான் சம்ஸ்கிருதம் வந்துடுச்சு, விடக்கூடாது. ராமாயணம் ஒரு 30-35 ராமாயணம் பண்ணியாச்சு. பாகவதம் 30-35 பாகவதம் பண்ணியாச்சு. அவள்தான். அப்புறமா அந்த பாகவத ராமாயணம் தான் ராமநாமத்தை கொண்டு வந்து விட்டு இருக்கு. எல்லாமே சேமம் தான், மங்களம் தான். அதனால பாராயணம் பண்ண முடியலன்னு விட்டுடாதீங்க. நீங்க பாராயணம் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா பகவான்களை, நான் பொய் தான் சொன்னேன், பொய் சொல்லிதான் புஸ்தகம் வாங்கினேன், பாகவத புஸ்தகம் அண்ணா நகர்ல. எனக்கு படிக்க தெரியும்னு சொல்லிதான். ஆனா அதை மெய்யாக்கிட்டான். இப்ப உன் படிக்க தெரியல, அதுதான் சத்தியம் விதாதும் நிஜபிருத்திய பாஷிதம். நம்ம உண்மையா பக்தி பண்ணா, உண்மையா படிக்க ஆசை இருந்தா, நிஜபிருத்திய உண்மையான பக்தனா இருந்தா கண்டிப்பா அதை சத்தியமாகுவான். அந்த வாக்கியத்தை பகவான் சத்தியமாகுவான். சரி, ஏதோ உங்களோட ஷேர் பண்ணின இந்த விஷயத்த பாகவத பாராயணம் பண்ணும்போது அது எப்பொழுதும் அந்த ஞாபகம் வரும். ஏன்னா அது பெரிய மாற்றமாச்சு எனக்கு இந்த சம்ஸ்கிருதத்துல படிக்கிறது. இன்னைக்கு பாகவத சம்ஸ்கிருதம் சப்தாகமா பண்றேன்னா அது பகவானே குருவா இருந்து சொல்லி கொடுத்தது தான். அதுக்கு விதைப்பட்டது யாருன்னா பிரம்மஸ்ரீ சுந்தரகுமார சுவாமி உபன்யாசம் கேட்டுதான், அவருடைய பாகவத பாராயணத்துல கலந்துதான் அந்த வாசனை, அந்த அனுகிரகம் தான் கிடைச்சது. ஆனா பகவான் குருவா இருந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டான். 5வது நாள். ஆனா உண்மையிலே சொல்றேன், முன் ஜென்மத்துல நான் பாராயணம் பண்ணாம இருந்தா இந்த ஜென்மத்துல வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. முன் ஜென்மத்துல ஏதோ பாராயணம் பண்ணி விட்டு இருக்கணும். அதனாலதான் இந்த வாசனை அந்த சத்சங்கத்துல போய் சேரணும். ராமூர்த்தி மாமான்னு கொண்டு போய் ஒருத்தர் இட்டு போய் பொட்டி வச்ச சைக்கிள் அவர் இட்டும் போய் ஒரு சைக்கிள்ல போய் அண்ணாநகர்ல அட்டன் பண்ணணும். முதல் பாகவதம் கேட்கறேன். அதுக்கு முன்னாடி மகாபாரதம் தெரியும், ராமாயணம் தெரியும், பாகவதம் தெரியாது. அப்போ ஒரு சத் சங்கத்தின் மூலமாக அங்க போய் சேரணும்னு, பாகவதம் கேட்கணுன்றது, பாகவத பாராயணம் பண்ணணும்னு, அப்ப நம்ம உபன்யாசம் பண்ணணும், பாகவத பாராயணம் பண்ணணும். இதெல்லாம் பகவானுடைய ஏற்பா, அந்த முன் ஜென்மத்தினுடைய வாசனை. இல்லைன்னா வராது. இது ஏன் சாமர்த்தியம், நான் படிச்சுட்டேன், எனக்கு ஞான உதயமாச்சு. முன் ஜென்மத்துல விட்ட குறை தொட்ட குறை இருந்தாதான் இந்த ஜென்மத்துல படிக்க வரும். முன் ஜென்மத்துல விட்ட குறை தொட்ட குறை இருந்தாதான் அந்த படிக்கணுன்ற ஆர்வமே வரும். ரிணாம் ஜென்ம சகசிராணம் பக்தி பிரீதி ஜாயதே. இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான ஜென்மல்ல மனுஷ பிறவி எடுத்து புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் பக்தி பண்ணணுன்ற ஆசையே உண்டாகுமா. மனுஷியானம் சகசேஷு கச்சித்தி அது சித்தையே. 1000ல் யாரோ ஒருத்தன் தான் சித்தி அடைய முயற்சி பண்ணலாம். அதுலயும் வடிகட்டி 1000ல் யாரோ ஒருத்தன் தான் கிருஷ்ண பக்தி வருவானா. அப்படிலாம் கீதையில பகவான் சொல்றான். அதனால இந்த பாக்கியம் இன்னைக்கு படிக்க வச்சிருக்கான். டைமு கொஞ்சம் ஆயிடுத்து, கோபிச்சுக்காதீங்க. ஆனா பாராயணம் பண்ணலாம். அதனால பகவத் கிருபை இருந்தாதான் பாகவதம் படிக்க முடியும்.
நாமளா நினைச்செல்லாம் பாகவதம் படிச்சிட முடியாது. பகவத் கிருபை இருந்தால் தான் பாகவதம் படிக்க முடியும், பாகவதம் தொட கூட முடியும், பாகவத தர்சனம் கூட பட முடியும். அவனுடைய அருள் இல்லாம, மகானுடைய அருள் இல்லாம, மகான்களுடைய அருளும் மகானுடைய அருளும் சேர்ந்து இல்லாம பாகவத்தை நாம தொட கூட முடியாது. பாகவத்துல அப்ப எங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றது, ருச்சி வர்றது? வாசுதேவ கதா ருச்சி சியான் மகத் சேவையா விப்ராக புண்ணியதித்த நிஷேவனாத்து. அப்போ வாசுதேவ கதா ருச்சி சத்த, அதுல நம்பிக்கை வரும், வாசுதேவ கதையில ருச்சி ஏற்படும்னா தத்த அன்பகம் கிருஷ்ண கதா பிரகாயதாம் அனுக்கிரகேன அசுனவம் மனோகரம். மகானுடைய அனுக்கிரகம் இருந்தாதான் மனசுக்கு அபகரிக்கக்கூடியதாக இருக்குமா பாகவத கதை, இல்லைன்னா பக்தி ருச்சி ஏற்படாது. சரி, ஓகே, அப்படியேப்பட்ட பாகவதம் என்னை படிக்க வச்சிருக்கு. சரி, உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டேன். பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 சீதாபதி ராம 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 ஜெய் ஸ்ரீ ராம 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 ராம. 16வது ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரதம ஸ்கந்தம் முதல் ஸ்கந்தம் 16வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம ராம ராம. அத ஷோடசோத்தியாய. ஸ்ரீ ஹரே நமः ஷரே நமः ஷரே நமः கோவிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. அத ஷோடசோத்தியாய. சுதுவாச்ச தத பரீட்சித்வஜவர்ஜ சிக்ஷயா மகிம் மகாபாகவத சசாசः யதா ஹி சுத்யம் அவிஜாத கோவிதாः சமாதிஷன் விப்ரஹ மகத்குணஸ்ததா ச உத்தரஸ்யம் தனயாம் உபயேம இராவதிம் ஜனமே ஜயாதிம் சதுரஸ் தஸ்யாம் உத்பாதயத் சுதான் ஆஜஹார அஸ்வமேதாம் ஸ்திரீன் கங்காயாம் புரி தக்ஷிணான் சாரத்பதம் குரும் கிருத்வா தேவாः யத்ராக்ஷி கோச்சராः நிஜக்ராஹ ஓஜசா வீரः கலிம திக்வஜயே क्वचित् நிருபலிங்க தர்ம சூத்திரம் தந்தம் கோவிதலம் பதா சௌணுவாச்ச ஹஸ்ய ஹேதோ நிஜக்ராஹ கலிம் திக்வஜயே நிருபः நிருதேவ சிக்ஷ்ணத்ருக்கு சூத்ரக அசௌ காம் யः பதாஹனத் தத் கத்யத மகாபாக யதி கிருஷ்ண கதாஸ்ரயம் அதவாஸ்ய பதாம் போஜம் மகரந்தலிஹாம் சதாம் யமன்யர் அசதாலாபிஹி ஆயுஷோ யத் அசத்வேயம் ஸ்ரோத்ராயுஷாம் ருணாமங்க மர்த்தியானம் விரதமிச்சதாம் யுஹோ பகூதோ பகவான் மிருத்யுஹோ சாமித்ர கர்மணி ந கஷ்டின் மிரியதேவ தாவத் யாவதஸ்தை ஹாந்தகः ஏததர்த்தம் ஹி பகவான் ஆஹூதः பரமர்ஷிபிः அஹோன்றுலோகே பீயேத ஹரிலீலாமிருதம் வச்சः மந்தஸ்ய மந்த பிரக்ஞஸ்ய வயோ மந்தாயுஷஸ்ய வை நேத்ரயா ஹரியதே நக்தம் திவாச்ச வியர்த்த கர்மபிः. சுதுவாச்ச யதா பரீட்சித் உருஜாங்கலே அஸ்ருணோத் ஹரிம் பிரவிஷ்டம் நிஜ சக்கரவர்த்திதே நிஷம்ய வார்த்தாம் அனதிப்ரியாம் ததः சராசனம் சம்யுக சௌண்டிராததே ஸ்வலங்கிருதம் சியாமதுரங்க யோஜிதம் ரதம் மிருகேந்திரத்வஜமாஸ்ரித புராத் ருதோ ரதாஸ்பத்திப பத்தியுக்தயா ஸ்வசேனயா திக்வஜயாய நிர்கதः பத்ராஸ்வம் கேதமானம் ச பாரதம் சோத்தரான் குருன் கிம்புருஷாதீனி वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिं तत्र तत्रोपशृण्वाणः स्वपूर्वेषां महात्मनां रहीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रादम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपात्राणं देशां भक्तिं च केशवे देव्य परमसन्तुष्टः प्रीत्यजुम्बितलोचनः महाधनानि वासांसि तदो हारान् महामणाः सारथ्य पार्षद सेवन सख्यदौत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान् स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति द्रुपदिश्चरणारविन्दे तस्यैव वर्तमानस्य पूर्वेषं मृत्युमन्वहं नादिदूरे किलाश्चर्यं यदा सिद्ध तन्निबोध मे धर्म पदैहेन चरण विच्चायाम् उपलप्यगां पृच्छति स्पर्शवदनां विपत्सामिव मातरं धर्मोवाच कश्चित् भद्रे अनामयम् आत्मनस्ते विच्छायासि म्लायदेशन् मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्दरादिम दूरे बन्तुं शोचसि कश्चनाम्ब पादन्यूनं शोचसि मैकपादम् आत्मानं वा वृषलेर्भक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृदयज्ञ भागान् प्रजाबुध सुन्न भगवत्यपश्यति आरक्ष्यमाणः स्त्रिया उर्वी बालान् शोचस्यतो पुरुषादिर्यवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाक्रियान् किं शत्रबन्धु कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि
राष्ट्राणि वा दैरावरोपितानि इतस्ततो वासनपाणवासस्नानजमायोन्मुख जीवलोकं यत्माम्बदे भूरि परापदार कृतापदारस्य हरिर्दरित्री आंध्रहितस्य स्मरति विसृष्टः कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि इदं मम चक्ष्व नव दवादिमूलं वसुन्तरे द्येन विकर्षितासि कालेन वादे बलिनाम बलियसा सुराचितं किं हृदमम्ब सौभगं धरण्युवाच भवान् हि वेद सत्सर्वं जन्मं धर्माणु पृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येनः पादेन्द्रोकसुगापहिः सत्यं शौचं दया शान्तिस्त्याग संतोष आर्जवम सत्यं शौचं दया शान्तिस्त्याग संतोष आर्जवम समोतमस्तव साम्यं तितिक्षोभरदिः श्रुतम् ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिः धैर्यम् आर्तवमेव च प्राकल्प्यं प्रश्रयशीलं सहवोजो बलं गगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनहङ्कृतिः एते चान्यच्च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्राप्त्यां महत्त्वमिच्छद्भिः न व्यन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चाणु शोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तदा आश्रमान् ब्रह्मादयो बहुदितं यत् अपाङ्गमोक्ष कामस्तव समचरन् भगवत्प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासम् अरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते अनुरक्तां तस्याहम् अब्ज कुलिशाङ्कुश केतुकेतैः दस्याहम् अब्ज कुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदेन् भगवतः समलं कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलप्य ततो विभूतिं लोकान् समां दर्शितत् उत्स्मयतिं ततन्ते यो वै ममादिपरम् आसुर वंशराज्ञाम् अक्षयिनी शतमापानुदत् आत्मतन्त्रः तां दुस्तमोण पदम् आत्मनि पौरुषेण संवादयन् यदुषु रम्यम् अभिप्रदङ्गम् खावा सहेद विरहम पुरुषोत्तमस्यं प्रेम बलोक रुचिरस्मित बल्कु जल्पैः स्थैर्यं समानं हरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्ग्रि विडङ्गिदायाः तयोर्येवं कथयतोः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षन्नाम राजऋषिः प्राप्त प्राचीं सरस्वतीम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथिवी धर्मं संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री हरे नमः शरणे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय झाणिकान्तस्मरणं जय जय राम 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 सर्व साधु की जय। राम 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 राम। अद श्री हरे नमः शरणे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अद सप्तदशोऽध्यायः। सूतवाच तत्र गोविन्दं राजः हन्यमाणमानादवत् दण्डहस्तं च वृषलं तादृशेन नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिप्यतं वेपमानं पदैकेन सीतन्तं सूत्रताडितं रां च धर्मदुःखाङ्क्तीनां वृषं सूत्रपदाहतां विवत्सं शाश्वतनां श्रामं यवसमिच्छतिं पप्रच्छ तदमारुढः कार्तस्परपरिच्छदं मेघगम्भीर्या वाचा समारोपितकर्मुकः हस्तमच्चरणे लोके बलात्यंश्च बलान् बलि नरदेव असिवेशेन नडवत् कर्मणात्वचः यस्त्वं कृष्णे गदे दूरम सह गाण्डिवधन्मना सोच्य अस्य चोच्यान् रहसि प्रहल्पदमर्हसि त्वं वा मृणालधवलः पादन्योन् पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिगेरयन् न जातु पौरवेन्द्राणां गोर्दण्डं परिरम्पिते बोधले अनुपतन्त्यस्मिन् विनादे प्राणिनां शुचः मा सौरभेय अनुशुचो येदु दे वृषरात् भयं मा रोधिरम्बपत्रन्ते कलानं मय्य शास्त्री यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते सात्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष रक्तं परो धर्मो ख्यातानाम् आर्तिनिग्रहः अधीयनं वदिष्यामि हि बोधत्रहम् असत्तमं को अवृच्छत् तव पादं स्तेन सौरभेय चतुष्पद मा भूमस्त्वातृषा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभत्रन्वः साधूनाम् अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जने
अनागस्त्यगं युञ्चन् सर्वदा अस्यच्च मद्भयं साधनं वत्रमेव स्यात् असाधुतमने कृते अनगस्त्यः बोधेश यः अगस्कर्ण निरङ्कुशः आहर्तास्मे भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सा अङ्गदं राज्ञ हि परमो धर्मः स्वधर्मस्य अनुपालनं सा सुधा अस्यान् यदा शास्त्रम् उत्पदानि यदा शास्त्रम् अनापत्युत्पदानि धर्म उवाच एतद् पाण्डवेयानां व्यक्तमार्ता वयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णौ दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतस्युः पुरुषशव पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहितः केचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे ब्रवम् अप्रदक्यात् अनित्यस्यात् इति केष्वपि निश्चयः अत्राणुरूपं राजर्षे विमृशस्वमणिषया सुदुवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् त्वजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः परिचष्टतम् राजोवाच धर्मं ब्रविषि धर्मज्ञ धर्मासि वृषरूपतृक् यत् अधर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् यत् अधर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देव मायाया नूनम गति अगोचर चेदसो वचश्चापि बोधानामिति निश्चयः तपःशौचं दया सत्यं यदि पादः कृते कृताः अधर्मांशस्त्रयो भग्नः स्मयसङ्गमदेस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेत्यतः तं जकृक्षत्य अधर्मो अयम् अन्धुदे नैतितः कलिः इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुपरा सति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासी सर्वतः कृतकौतुका शोचतर्षुगला सात्वी दुर्भगे वोज्जिताधुना अब्रह्मण्यान् नृपब्जातः सूत्र वोक्षन्ति मामिति इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निषादमाददेर्घर्कं कलये अधर्महेतवे तं जिगांसुम् अभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं सरसा समहात् भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदीन् श्लोक्य आह चेदं हसन्निव राजोवाच नदे कुडागेश यशोधरणं भक्ताञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवदा कथञ्चन क्षेत्रमदीयत्वम् अधर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्त अयम् अधर्मभूगः लोभ अनृतम चौर्यम् अनार्यमंहो ज्येष्ठश्च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तत् अधर्मबन्तो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावत्र यत्र जन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञविधानविज्ञाः यस्मिन् हरिर् भगवान् युज्यमान युज्यामूर्तिर्यजतां शं तनोति कामान् अमोघान् स्तरजङ्गमाणम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा सुदुवाच परीक्षिदैवम् आदिष्टः स कलिर्जातवे वधुः तमुत्यदासि आहेतं दण्डपाणिं युवोत्यतम् कलिर्वाच यत्र क्वचन वत्स्यामि हि सार्वभौमो दवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्राभिहित्वा मातेषु सरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देशमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्यः आदिष्टं स्ते हनुशासनं सोदवाच अप्यतितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदोत्योदं फाणस्त्रयस्सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमाणाय जातरूपम् अदत् प्रभुः तदोन्द्रदं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमुनि पञ्चस्थानानि ह्यधर्म प्रभव कलिः औत्तरेयेन तत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृते अधीतानेन सेवेद बुभुषु पुरुष क्वचित् विशेषदो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टं स्त्रीन् पादान् तप शौचं दयामिति वृषस्य नष्टं स्त्रीन् पादान् तपःशौचं दयामिति तपःशौचं दयामिति प्रतिसन्दत आश्वास्य महिं च समवर्तयत् स एष एतस्यात्यास्त आसनं पार्थिवोचितम् पितामहे नोपन्यस्तं दाक्ष्यारण्यं विवक्षदा आस्ते अधुना स राजऋषि गौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् कजाक्ष्वये महाभागश्चक्रवर्ती बृहत्शवाः इत्थं पुराणभाव अयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः श्रोणिम यूयम सत्राय दीक्षिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्री नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानकी स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय।
अद अष्टादशोऽध्यायः। सुदोवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न माधुरुतरे वरदः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपदितात् यस्तुः दक्षगात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवति अर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वदा संगम विज्ञात अजित संस्थितिः वैयासिक जहो शिष्यः गंगायां स्वं कलेवरं न उत्तम श्लोक वार्ताणां द्विषदं तत्कथामृतं स्यात् संभ्रम अंतकाले अभि स्मरदं तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्ट अभिः सर्वतः यावदीशो महानूर्व्याम् आभिमन्यव एकराट्टे यस्मिन् अहर्यस्येव भगवन् उत्ससज्जगां तदैवेह अनुवृत्तो असु अधर्म प्रभव कलिः नाणुत्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलान्याश सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं नु बालेश सूरेण कलिना धीरबीरुना अप्रमत्तस्प्रमत्तेषु यो वृको दृशु वर्तते उपवर्णन् अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृको दृशु वर्तते अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको दृशु वर्तते उपवर्णितं यदत् वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव पदो भेदम् आख्यानं यदपृच्छत या या कदा भगवतः कदलीयोर्कर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यस्ता बुभूषुभिः ऋषिवचो सूतजीव समासंयः शाश्वतीर्विशदं शशः यस्तं संससि कृष्णस्य मत्यानाम् अमृतं हिनः कर्मन् यस्मिन् अनास्वासे धूमधूम्रात्मनाम भवान् आबाय यदि वोवेन्त पादपद्मा समं मधु तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानं किमुदाशिषः को नाम तृप्यत् रसवित्कतायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वराये भवपात्ममुख्याः तन्नो भवन् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतं नो विदनोद वित्पन् स वै महाबाहवद परीक्षित् येन भवर्काख्यम् अदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासिकी सप्तितेन वेजक खगेन्द्रध्वजपादमूलं ज्ञानेन वैयासिकी शब्दितेन वेज खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्न परम पुण्यम् असंप्रदाप्तम् आख्यानम् अत्यद्भुत योगनिष्ठम् अनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामं सुदुवाच अहो वयं जन्मप्रदात्यस्म वृत्ता अनुवृत्त्याभि विलोमजाताः दौष्कुल्यमादिम विदनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधानयोगः कुतः पुनः नामतस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य यो अनन्तशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वात् यम् अनन्तमाहुः वेदापदानुसूचितेन गुणैरसंयान् अधिशायनस्य हित्वेतरान् प्राप्त यदो विभूतिः यस्याङ्गुलिरेणं दृश्यते अणुविप्सोः हदावि यत्पादनः वसृष्टम् जगद्विरिञ्चोपहृदाहणाम्बः शेषं पुनत्यन्यतमो मुकुन्तात् कोणामलोके भगवत्पदार्थः तत्राणरक्तः सकसैव धीरा व्यबोह्य देहादिषु सङ्गमूढम् भजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमस्पतर्मः अहं हि पृष्टो अर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्माभगमो अत्र यावान् नव पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तदा समं विष्णुगतिम विपश्चितः एकदा नरुत्यं व्यचरन् मृगयमणे मृगानानुगतः श्रान्तः श्रुतिदस्तृषितो वृषं तलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् अदर्शमुनिमासनं शान्तमेलिदलोचनं प्रदिरुत्तेन्द्रियप्राणं मनोबुद्धिम् उपारदम् स्थानत्रयात् परमं प्राप्तं ब्रह्मबोधम् अभिक्रियम् विप्रकीर्णं जडाच्छन्नं रौरवेन अजिनेन च विशिष्य ताळरुदकम् तदा बोधमयाच्यत आलप्त तृणभूम्य आदि असंप्राप्ता अर्क्यसून्द्रतः अवज्ञातम् इवात्मानं मन्यमानश्च गोपः अभूतपूर्व सकसा शुतृप्त्याम् अर्थितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यबुद्ब्रह्मणं मत्सरो मन्युरेव च स्वदु ब्रह्मऋषिरंसे कदासुम् उरगं रुषा विनिगच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निप्रदाशेषकर्णो मिलिदक्षिणः रसा समाधिराहुस्मित् किं नु स्यात् शत्रुबन्धुभिः तस्य पुत्र अधितेजस्भिः विहरन् बालको अर्भगैः प्राज्ञाहं प्रापितं तादं सत्त्वः तत्रेदम् अप्रवित् अहो अधर्मपारणं प्रेम्नाम बलिं भुजा
बलि भुजामिव स्वामिन्यहं यत्तस्तासानम द्वारबाणम सुनामिव ब्राह्मणः शत्रुबन्धुर्हि द्वारबाणो निरूपितः स कथं तत्कृहे त्वास्तः सपाण्डम भक्तुमर्हति कृष्णगदे भगवतिः शास्त्रव्युत्पदकामिनां तद्भिन्न सेदनात्याहम शास्मे पश्यत मे बलम् एतत् रोषतां रक्षः वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्यापस्पृश्य वज्र विसर्जः इदलङ्कितमर्यादं दक्षः सप्तमे अहनि दंश्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितं मे तदत्रुहं तदो अप्यत्याश्रमं बालोः गले सर्वकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्थः मुक्तकण्ठोरुतः सवा आङ्गिरसो ब्रह्मण श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकेर्नेत्रे दुष्टः स्वांसे मृदोरकं प्रसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मात् दुरोदिशि केन वादे अवकृतमित्युक्तः युक्तितः स न्यवेदयत् यशन्य शब्दमदतर्कं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजम् अप्यनन्दत् अहो पतं हो महदग्निदे कृतम् अल्पीयसि द्रोह पुरुदमोत्कृतः नवेन्द्रुभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मादमर्हस्य अभिपक्वबुद्धेः यद्देश सदर्भशकेन दूप्ता विन्तन्ति पत्राणि अहुदोपया प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि तदङ्गपाणौ अयम् अङ्गरोगः तदा हि स्वच्छौरचिरो विनक्ष्यत् आरक्ष्यमाण अविवरूधवत् क्षणात् तदत्यनः पापम् उपैत्यनन् वयम् यन्नष्टनादस्य वसुर्विलुम्बकात् परस्परं क्रान्ति सपन्ति वृञ्चते पशुस्त्रियो अर्थान् पुरतस्य वोचनाः तदा आद्यदं धर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचार युतस्त्रयीमयः अदो अर्थकामाभिः निवेशितात्मनां स्वनाम कविनामिव पर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः सदो सम्राट् बृहत्सभाः साक्षात् महाभागवत राजर्षि हयमेधयाट् शुतृत् शमयुधो दीनः नैवास्मच्चापम् अर्हति अपापेषु स्वकृत्येषु बालेन अपक्वपुत्रिणा पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलप्ता सप्ता क्षिप्ता हदा अभि नासितत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभुवाभिः यदि पुत्रकृताकेन सो अनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाहं तत् अचिन्तयत् प्रायश साधवो लोके परतन्त्रेषु योजितः न व्यतन्ति न हृष्यन्ति यदा आत्मा अगुणाश्रयः श्रीमद्भागवते महापुराणे स्कन्धे प्रसवोलम्बनम नाम अष्टादशोऽध्यायः श्री हरे नमः सर्वे नमः पूर्विकार्जुनस्मरण गोविन्द गोविन्द अदे एकोनविंशोऽध्यायः सुदोवाच अहिवदिस्तद तत्कर्म कर्क्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मणाः अहो मया एष मणाद्यवत्कृतं निराकसि ब्रह्मणि कूढतेजसि ध्रुवं तदो मे कृतदेव हेरणात् दुरत्ययं व्यसनं नातिथिक्कात् तदस्तु कामं तः निष्कृताय मे यदा न कुर्यं पुनरेव मत्ता अत्येव राज्यं बलमुत्तकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे तहत्वपत्रस्य पुनर्नमे अभूत् पापीयसि द्विजदेव गोप्यः न चिन्तयन् नित्यम् अदा शृणोत् यदा मुने सदोक्तो निर्दिष्टक्षकाख्यः ससाधुमेने निशिरेण दक्षगान् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अदो विहाय मम अमुञ्च लोभम विघ्नसिदौ हे यदया पुरस्तात् कृष्णग्निसेवाम् अधिमन्यमाण उपाविशत् प्रायम् अमर्त्यमुन्नत्यां यावै रसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णग्निरेणु आप्य अधिकाम्बुनेत्री पुनादिलोहान् उपयत्र शेषान् हस्तं न सेवेद मरिष्यमाणः यदि व्यवस्थित सपाण्डपेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपत्यां तत्यो मुहन्ताङ्ग्रिम् अनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संघः तत्रोपचक्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः शिष्यः प्रायेण तीर्थापि कमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रि वसिष्ठः श्यवण सरत्वान् अरिष्टनेमे पृगिरङ्गिराश्च पराशुरो गादिसुधाद राम उदत्य इन्द्र प्रमद इत्मबाहु मेधातिथि देवल आष्टिशेनो भारद्वाजो बौद्धम पिप्पलादः मैत्रेय और्व कवशः कुम्भयोनिः त्वयिवायन भगवान् नारदश्च अन्यच देवर्षि ब्रह्मऋषि वर्य राजऋषि वर्य अरुणादयश्च नानाऋषि प्रबलान् समेतान् अप्यच्च राजा सरसा भवन्ति सुगोपविष्टेश्वर देशभूयः कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेद उपस्थितो अग्रह अभिगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमान् महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राक्तं कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् सृष्टं पदगर्ह्यकर्म तस्यैव मे अहस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूल द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु तत्ते
तमो भयादं प्रदियन्ति विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे यजोवसुष्टः कहस्तक्षगो वा असद्बलं गायत विष्णुगादाः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते तदि प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमोत्विजेभ्यः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते तदि प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमोत्विजेभ्यः पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते तदि प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्रेस्तु सर्वत्र नमोत्विजेभ्यः। गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। इति स्वराजा इति स्वराजा अत्यवसायुक्तः प्राचीनं मूलेषु कुशेष धीरः उदं मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तबारः एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिविदेव संगाः रसस्य भूमं व्यगिरन्ने प्रसूनैः मुदा मुहुर्तुन्दुभयश्च नेदुः महर्षियो वै समुपाकथा ये प्रशस्य सात्वित्यनुमोदमानाः ओच प्रजा अनुग्रहशीलसारः यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपं नवा इदं राजऋषिवर्यश्चित्रं भवत्सु कृष्णं समणप्रदेश ये अत्यासनं राजकिरीटजष्टं सत्य जहुर् भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे भजमतावधिहा स्महे अत्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं रजस्कम विशोगम यस्यत्ययं भागवतप्रधानः यास्यत्ययं भागवतप्रधानः लोकं परम गर्जस्कम विशोगम यास्यत्ययं भागवतप्रधानः आश्रित्य तत्ऋषिगण वच परीक्षित समं प्रमोदिच्युत गुरु चाब्जलिकम् आवर्षतैनान् अभिनन्त्य वियुक्तान् शुश्रूषमाण चरितानि विष्णोः समागता सर्वदैव सर्वे भेदा यथा मूर्तितरस्त्रिपुष्टे नेहाद मामुत्रच्च कश्चनात् हृदे परानुग्रहम् आत्मशीलं ततश्च वपृच्छ्यमिमं विपृच्छ्य ऋषभ्य विप्रायदिकृत्य गदायाम सर्वात्मना म्रियमाणश्च हृद्यम सुत्तं च तत्रामृषदाभियुक्ताः तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया घामणमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलापदुष्टो मृदश्च बालिरवधूतवेषः तं च यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुपाक्वंस कपोलगात्रं चार्वाय दक्षन् असतुल्यकर्ण सुब्रवाणनं कंबु सुजातकण्डं सुब्रवाणनं कंबु सुजातकण्डं निगूढजत्रं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिमलिवल्कूतरं च दिगम्बरवक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहं समरोत्तमापं श्यामं सदाभिर्च वयोरङ्कलक्ष्म्या स्त्रीणं रमणोक्तं रुचिरस्मिदेन प्रत्युतिदास्ते मुनिय स्वास्नेभ्यः तल्लक्षणक्त्या अभिगूढवर्चसं स विष्णुरादो अदितया आहदाय तस्मै सवर्ग्यं सरस आजहार अदो निवृत्तः शबुदा निस्त्रयो अर्पका महासने सोपविवेश पूजितः संप्रतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगैः विरोचतालं भगवान् यजन्तुः प्रहक्षदारा निहरिः परीतः वसन्तमासीनम् अकुण्ठमेधसं मुनिं ध्रुवो भागवतो अप्युपेत्य प्रणम्य मूर्त्ना बहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिरा सुन्दरतयान् वपृच्छत् परिषित्वाच अहो अत्यवयं ब्रह्मण सत्सेव्या शत्रुबन्धवः कृपया अदितिरूपेण भवद्भिस्त्यर्थः कृतः येषां संस्मरणात् पुंसां सत्यसुत्यन्ति वैगृहः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौच आसनादिभिः सान्निध्यात्य महायोगिन्ये पादकानि महान्त्यभिः सत्य नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेधरः अभिमे भगवान् प्रीतः कृष्णपाण्डुसुतप्रियः पैतृससेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्य आत्मबान्धवः अन्यदा दे अव्यक्तगदेः दर्शनं न कथं तृणां निद्रां म्रियमाणानां संसिक्तस्य बनीयसः अधुपृच्छामि संसिक्त्यं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्यैह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा यच्छोदव्यम् अधोजप्यं यत्कर्तव्यं द्रविप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यत्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मण गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यदेश्यवस्थानम् अभिकोदोहणं क्वचित् सूतवाच एवम् आभाषितपृष्टः स राज्ञाश्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषितधर्मज्ञः भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुखागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः।
इति प्रथमस्कन्ध समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सीतापदे इदोड मोदल स्कंदम पूर्ति अडेयिदे। सीतापदे राम 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 ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். நம்ம பாகவதம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் பண்றோம். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்ன காரணத்துக்காக பண்றோன்னு. அது கோலாகலமா பண்ணா ரிலாக்ஸா பண்ணணும். ஆனா இப்ப அவசரம் என்னன்னா உலகத்துல சமாதானம் ஏற்படணும். அதான் மெயினான நோக்கமே, முக்கியமான நோக்கமே அதான். அதனால ஏதோ சிம்பிளா பண்றோம், அவ்வளவுதான். பாகவத பாராயணம் அதான், இது போதும். பகவானுக்கு பாகவத பாராயணம் பண்ணா சந்தோஷம், அதான் முக்கியம். சரி, ஓம் தத்சத். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் திதிய ஸ்கந்தः அத பிரதம அத்தியாயः. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் ஸ்ரீ ஹரே நமः சரணம் கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த நமோ நமः. श्रीशुगोवाच वर्यान्येषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां शोधव्यादिशयपरः. वर्यान्येषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां शोधव्यादिशयपरः. वर्यान्येषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां शोधव्यादिशयपरः. गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद नमो नमः. श्रीशुगोवाच वर्यान्येषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां शोधव्यादिशयपरः. शोधव्यादिने राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां नेत्रया हर्यते नक्तं व्यभागेन च भावयः. दिवा च अत्रैः या राजन् कुटुम्बपर्णेन वा देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तु निधनं पश्यन्नपि न पश्यति. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता वयं एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः प्रायेण मुनयो जाजन्निवृत्ता विदिशेततः नैर्गुण्यस्तरमन्त्य स्म गुणानुकथने हरेः. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् त्वापराधो त्वयिपायणात् अहं परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेत राजर्षि आख्यानं यत् अधीतवान् अदहं दे अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यश्च शतदामाशु स्यान्मुखन्ते मदिसति यद निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतोपयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं राम 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 राम. किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षहायनेरिह परं मुहूर्तं विदितं घटेद श्रेयसे यतः खड्वाङ्गनाम राजर्षि ज्ञात्वयात्तमिहायुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं तवाप्येदहि कौरव्यस्य शब्दाहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावत्यत् साम्रायिकम्. अंतकाले तु पुरुष आगते गतसत्त्वसः चिन्तयत् अशङ्गशस्त्रेण स्पृहं देहे अणियेच्छितं गृहात् प्रज्वलितोदीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः स्वच व्यभिक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने अप्यसेन मनसा सुत्तं श्रीवृत्त ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्चेद्जिदश्वासः ब्रह्मबीजम् अविस्मरन् नियच्छत् विषयेभ्यो अक्षर मनसा बुद्धिसारथिः मनकर्मभिराक्षिप्तं सुपार्थे धारयत्या तत्रैव अवयवं ध्यायत् अव्युच्छिन्नेन चेदसा मनोनिर्वशयं त्यक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोः मनो यत्र पश्यति रजस्तमोप्यम् आक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्चेद्धारणिका धीरः हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्तार्यमानायां योगिनो भक्तिरक्षणः आशु सम्पत्त्यते योग आश्रयं पत्रमीक्षतः. राजवाच यदा संधार्यते ब्रह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशीव हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलं. शिशुगोवाच जितासुन जितस्पासः जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयमस्तविष्टश्च स्तवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं बोधं भव्यं भवश्च सत्.
भगश्च सत् काण्डघोषे शरीरे अस्मिन् शब्दावरण संयुते वैराज पुरुषो यो अशुभ भगवन् धारणाश्रयः पादलं यतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्टे प्रपदे रसादलं महादलं विश्वसुजात गुल्पौ तलादलं वै पुरुषस्य जङ्के ते जाननि सुदलं विश्वमूर्तिर्वोरुत्पयं विदलं चादलं च महीदलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नापि सर्वो गृह्णन्ति पुरस्थलं ज्योतिरनेकमस्त्य ग्रीवा महर्वदनं वै जनो अस्यं अवोररलिं विदरादिपुंसः सत्यं तु शेषाणि सगर्षशेष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुषाः कर्णो दिशश्रोत्रममुष्य सप्तः असत्यदर्शौ परमस्य नाशे ग्राणो अस्य गन्धो मुखमग्निरिक्तः त्योरक्षिणी चक्षुर अभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णुरहनि उपेच्य तद्भृजृम्ब परमेष्टिदिष्ट्यम् आवो अस्य तालु रस एव जिह्वा चन्दांश्च आनन्दस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्टा यम स्नेहकला तुजानि आसो जनोन्मादगरिच माया दुरन्त सर्गो यथावाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरष्टो अत्र एव लोभो धर्मस्तनो अधर्मपदो अस्ति पृष्ठम् हस्तस्य मेत्रं वृषणं च मित्रौ उक्षि समुद्रनगर्यो अस्ति सङ्गाः नत्यास्के नाट्यात् तनुरुहानि महुरुहा विश्वधनुरूपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वसितं मादरिस्व तदिर्वय कर्म गुणप्रवाहः येषस्य केशान् विदृम्ब वाहान् वासस्तु सन्त्यां कुरुवर्य अभुम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्ति महिमामनन्ति सर्वात्मनन्दकरणं तुगिरित्रमं आश्वास्वदर्युष्टगजा नखानि सर्वे मृगा पशवश्रोणि देशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनुष्या मनुजो निवासः आस्पदयुष्टगजा नखानि सर्वे मृगा पशवश्रोणि देशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनुष्या मनुजो निवासः कन्द्रविद्याधरचारणोत्सरः स्वरस्मृतिर् असुरानीकविद्यः ब्रह्माण्डं शत्रभुजो महात्मा विदुरग्नि श्रीतकृष्णवर्णः नानाविधाभिज्यं गणोपवन्नो द्रव्यात्मक कर्म विधानयोगः इयान् असौ ईश्वर विग्रहस्य सन्निवेश कथितो मयाते सन्धार्यते अस्मिन् बभुषि स्तवेष्टिः मनस्पबुद्ध्य न यदो अस्ति किञ्चित् स सर्वदी वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यदा स्वप्न जनेक्षिदैकः स सर्वदी वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यदा स्वप्न जनेक्षिदैकः तम सत्यमानंत नितिं भजेदः नान्यत्र सज्जते यदा आत्मपादः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कन्धे महापुरुष संस्थान वर्णे प्रथमाध्यायः श्री नमः गोविंद स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम स्वामी की जय सर्वसाधुमल्लिक की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः शेषगोवाच एवं पराधारणया आत्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्ध्य दुष्टात् तथा ससज्जेदम् अमोघदृष्टिर्यदाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः साप्तस्य हि ब्रह्मण एष पन्तः यन्नाभिवृद्ध्यायदि धीरपत्तिः परिभ्रमस्तत्र न विन्तते अत्तान् मायामये वासनिकावशयानः अद कविर्नामसु यावदत्तः स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्ध्यन्यदा तेन सैदते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यांशिदौ किम् अशुभो प्रयासैः बाहोस्वसिद्धे शुभपर्खणैः किम् सत्यञ्चलो किं पुरदान्न पात्र्या दिक्पल्कलादौ सदिं किं दुगूढैः चीराणि किं पदि न सन्ति दशन्ति भिक्षां नैवां कृपा परभृत सरितो अप्यशिष्यन् वृत्तागुहा किम् अजितो अवधिनोपसन्नाने कस्मात् भजन्ति कवयो दलदुर्मदान्तान् एवं स्वचित्ते स्वदयेव सिद्ध आत्मा प्रिया अर्थो भगवान् अनन्तः तम निर्वृतो नेदात्तो भजेद संसार हेतु परमश्च यत्र हस्तं त्वनातृत्य पराणचिन्तां हृदे पशून् असदिं नावयुञ्च्यात् पश्यञ्जनं फलितं वैतरण्यम् अस्मकर्मजान् परितापान् जुषाणम् केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं खञ्जरदाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनाय दक्षिणं कदम्ब किञ्जल्कपिशङ्गवाससं तदसन् महारत्न कदम्ब किञ्जल्कपिशङ्गवाससं रसन महारत्न हिरण्मयाङ्गदम स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम् उन्नित्र हृत्पङ्कज कर्णिकालये योगेश्वरस्थापित पादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्दरम् अम्लान लक्ष्म्या वनमालयार्चितं विभूषितं मे कलयाङ्गुलीयैर्महाधनेर्नूपुर कङ्कणादिभिः स्निग्धामलकुञ्जित नीलकुन्तलैः विरोचमानानन हासभेषलम् अधीनलीला हसिरेक्षणोल्लसत् गुरुभङ्ग संसूचित भूर्यनुग्रहम्
ईक्षेद चिंतामयम येन विस्वरम यावन् मनोधारण यावतिष्ठते एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावत् हसितुं कदा प्रदः जितं जितं स्थानम् अबोह्य धारयेत् परं परं श्रुत्यति यदा यदा यावन्न जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टविभक्ति योगः तावत् स्तरीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मरेत् स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यदि यदा जिघासुरिममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्यन् मनसा जिदासुः मनस्वबुद्ध्यामलया इयं य क्षेत्रक्रियेदान् जनयेत् तमात्मनि आत्मनमात्मनि अवरुत्य धीरोः लप्तोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो अनिमिषं परप्रभुः कुतो नु देव जगतां जयीशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णव आमनन्ति यत् तत् परं पदं वैष्णव आमनन्ति तत् यन्नेति नेदित्यदत् उत्सुक्षवः विसृज्य दौराप्यम् अनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्हडपदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तो परमेत् व्यवस्थितः विज्ञानदृक्पेद्य सुरन्तिदाशयः स्वपाषिण आविद्य उदं ततो अनिलं स्थानेषु षट्सुन्नमयज्जितक्लमः नाप्तं शतं क्षित्यधिरोप्य तस्मात् उदानं कत्योरसि तं नयन्मुनिः ततो अनुसंस्थाय धियः मनस्वी स्वदालुमूलं शनैर्नयेत् तस्मात् भ्रुवोरन्तरम् उन्नयेत् निरुत्तं शब्दायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तात्महुण्ड दृष्टिर्निर्भित्य मूर्तन दृश्येत् परं गतः यदि प्रयासेन पारमेष्ट्यं वैहायसानाम् उद यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निभाये सहैव गच्छन् मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वरणं गतिमाहुरन्दर् बहिस्त्रिलोक्यः भवनान्तरात्मनां न कर्मविस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यादवो योगसमाधिवाजाम् ऐश्वरं व्याधि विहायसा कतः सुषुम्नया ब्रह्मपदेन शोचिषा विद्युतकल्कादः हरेरुदस्तात् प्रयादि चक्रं तुभशैसुमारम् तद्विस्वनाभिम तदिवर्त्य विष्णोः अनियसा विरजेन आत्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषयत् विबुधा रमन्ते अदो अनन्तस्य महानलेन तन्दह्यमानं स निरीक्ष विश्वम् नित्यादिसिद्धेश्वर जुष्टदिष्ट्यं त्वयिवरात्यं तदु पारमेष्ट्यं न यत्र सोहो न जरा न मृत्युः नार्तिर्न च उद्वेग हृदये कुतश्चित् यच्चित्तदो अतः कृपया निदं विदां दुरन्त दुःख प्रभवान् दर्शनात् अदो विशेषं प्रतिपत्य निर्भयस्तेनात्मनाभो अनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मनाकं बृहदात्मलिङ्गं प्राणेन गन्तं रसनेन वै रसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनमत्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नवो गुणत्वं प्राणेन चाहुतिमुपैति कुयोगी स बोधसूक्ष्मेन्द्रियं सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसात्यगत्य सगतेन ज्ञातिः विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानम् उपैति शान्तम् आनन्तमानन्तमयो अवसाने वेदां गतिं बाहवतिं कदो यः स वै पुनर्नेह प्रसज्जते अङ्क एदे श्रुतिविदे वेदगीते त्वया पृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान् वासुदेवः न ह्यतो हन्य शिवपन्था विशद संस्कृताभिः वासुदेवे भगवती भक्तियोः यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकात्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदत्यवस्थयत् कूटस्थः रतिरात्मन् यतो भवेत् भगवान् सर्वबोधेश लक्षितस्मात्मना हरिः दृश्येत् बुद्ध्यादिभिः द्रष्टा लक्षणैरनुमापगैः तस्मात् सर्वात्मनराजन् हरि सर्वत्र सर्वदा शोधव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान् नृणां पिबन्ति ये भगवता आत्मनः सदां कदामृतं श्रवणपुरेश सम्प्रदं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां तृतीयस्कन्धे पुरुषसंस्थापरणं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री हरि नमः सर्वेश्वराय नमः। गोपिकार्जुन स्मरण गोविन्द गोविन्द। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवमेदं निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्मर्यमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रियमिन्द्रिय कामस्तु वर्ज प्रजाकाम प्रजापतिन् देवी मायां तु श्रीकामस्तेजस्काम विभावसं वसुकाम वसन् रुद्रान् वीर्यकाम अदो वीर्यवान् अन्नत्य कामस्तु अदिति में स्वर्गकाम अदिते सुदान विस्पान देवन राज्यकामः सात्यान् संसात गोपिशाम आयुष्काम अस्मिनौ देव पुष्टिकाम इलां यजते प्रतिष्ठाकाम पुरुषो रोदसी रोहमादरो रूपापि काम कंदर्वाण स्त्रीकाम अप्सर उर्वशीम
आधिपत्य काम सर्वेशम यजत परमेष्टिनम यज्ञ यजत यशस काम कोश काम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरिशम तंबत्यार्थ उमां सदीम धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन् पुत्रन यजत रक्षा काम पुण्यजनान ओजस काम मरुद्गणान राज्य काम मणुन देवान निर्जतिम त्वविचरण रजत काम कामो यचेत सोमम अकाम पुरुषम परम अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारतिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम एदावने वै यजतामिह निश्चयसोदयः भगवत्यचलो भावो यत् भागवत संगतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणर्विचक्रम आत्म प्रसाद उदयत्र गुणेश्वसंगः कैवल्य सम्मत पदस्तद भक्ति योगः कोणिर्वृतो हरिकथा सुकृतिं न कुर्यात् शृणुवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयासिकीं ऋषिं कविं एतत् शुश्रूषतां वित्तन् सोदसुनो अर्कति भाषितं कदा हरिकथो तर्कः सदा स्युः सदसि ध्रुवम् सवै भागवतो राजा पाण्डवैक महारथः बालक्रीडनकः क्रीडन् कृष्णक्रीडं च आददे वैयासिकश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुकाय गुणोदाराः सदां स्युः समागमे आयुर्हरदि वै पुंसाम् उत्त्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्य यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरव किं न जीवन्ति वस्त्र आयुर्हरदि वै पुंसाम् उत्त्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्य यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरव किं न जीवन्ति वस्त्र किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मे हन्ति किं ग्राम पशुवापरे स्वबिट्ट वराहोष्टकरहि संस्कृत पुरुष पशुः न यत् कर्णपदो भेदो जातनाम कृता कजः राम 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 विले पदे उरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वद कर्णपुडे नरस्य जिह्वासति तातुरिके वत्सूत न चोपकायत् उरुगायकादः वार परं पट्टगिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं न नमेन् मुगन्तं सावो करुण गुरुत सपर्यं हसे हरे लसत्काञ्चन कङ्कणो वा बर्खायुधे दे नयने नारायणं बर्खायुधे दे नयने नारायणं लिङ्गानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादुं ऋणं तौ त्रमजन्म पाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यौ जीवश्च वो बाहुवदाङ्ग्रीरेणं न जातुमत्यो अभिलभेदस्तु श्रीविष्णुपत्यमर्जस्तुलस्यः स्वसञ्चवो यस्तु न वेदगन्तं ततस्मसारं स्मृतिं वदेतं यत् गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेदात् यदा विकारो नेत्रे जलं कातृरुहेश हर्षः अदा विदेह्यङ्गमणो अनुगुणं प्रभाषसे भागवत प्रधानः यदाह वैयासिकरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः श्री हरे नमः श्री नमः गोविंदाचरणस्मरणं गोविंद गोविंद अथ चतुर्थ अध्यायः सुदोवाच वैयासगेदिति वाचसत्त्वनिश्चयमात्मनः उपदाद्यमतिं कृष्णे उत्तरेय सदीं व्यदात् आत्मजाय सुधाकार पशुद्रविणबन्धुषु राज्यच्चापि किले नित्यं विरुणां ममदां जहो अप्रचचैमं येवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे सत्तताणु महामणः संस्थाविज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रैवैर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं कृतः राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मण सर्वज्ञस्य दबाणः तमो विषीद्यते मह्यं हरे कथयद कथां भूय एव तमो विषीद्यते मह्यं हरे कथयद कथां भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यदिदं सृजते विश्वं दुर्भुपाव्यम् अधीश्वरैः यदा गोपायति विभुर्यदा संयच्छते पुनः यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषक्ति परपुमान् आत्मानं गृढयन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरिरद्भुतकर्मणः दुर्विपाप्यं विवापादि कविभिश्चाभिचेष्टितं यदा गुणंस्तु प्रकृते युगपत् क्रमशः अभिवा विभर्ति पुरुषश्चैकः कुर्वन् कर्माणि तन्मपिः विचिकित्सितं यदन्मे ब्रवीदो भगवान् यदा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु सोदवाच इत्युपामन्त्रितराज्ञा गुणानुकथने हरिः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं सचक्रमे श्रीशुकोवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सतुत्वस्थाने निरतलया गृहीतशक्तित्रिदयाय देहिनाम् अन्तर्भवायान् उभयलक्ष्ये वर्त्मने भूयो नमः सत्त्वजिनश्चिते असदाम् असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमांस्याश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृत्य दाशिचे नमो नमस्तेऽस्त्वऋषभाय सत्पदां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यादिशयेन रातसास्पदा मणिब्रह्मणि रंसिते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्शनं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुपुत्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसाधनात् संघं यदस्योपयदो अन्तरात्मनः वृन्तन्ति ब्रह्मगतिं कदक्लमाः तस्मै सुपुत्र श्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपर यशस्विनो मन्त्रविनो तपस्विनो दानपर यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गलः क्षेमं न विन्तन्ति विनायतर्पणं तस्मै सुपुत्र श्रवसे नमो नमः किरातहोणान्ध्र पुलिन्दबुल्गसा
आविर गंगा यवना कसादयः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः सुत्यन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः स एष आत्मा आत्मपदामधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः पदव्यलिकर अजशंकरादिभिः वितर्कलिंग भगवान् प्रसीदतां श्रियप्रतिजज्ञपति प्रजापतिः तियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पदिगदिच्छान्तक प्रश्ने सात्पदां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पदिः यदङ्ग्रिया विद्यान समाधितौतया धियानु पश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। वदन्ति चेत् कवयो यदारुचं समे मुहुन्त भगवान् प्रसीदतां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विधन्वता चस्य सदीन् स्मृतिं हृदि स्वलक्षण प्रादुरभूत्कलास्यतः समे ऋषिनाम ऋषभ प्रसीदतां बोधे महद्विर्य इमा पुरो विभुः इमाय निर्माय सेदे यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः स्व अलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पौर्ण्याणमयम सौम्या यन्मुखाम्बुर्हासवम् एतदेव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते नारदे विपृच्छते वेदकर्पाप्यदात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः श्री हरे नमः शरणु नमः शरणु नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। तुलसी 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 भगवान प्रिय। आद पंचमोध्यायः नारदवाच देवदेव चमस्ते अस्तु बोधभावना पूर्वज तत्जानीहि विज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यत्रवं यत् अधिष्ठानं यदः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यश्च यत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतत् भवान् वेद बोधभव्य भवत्प्रभुः करामलगवत् विश्वं विज्ञानावसिदं तव यद्विज्ञानो यथातारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजसि बोधानि हि बोधिर्येव आत्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टप्य पूर्णाभिर्यवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं न समं विभो नामरूप गुणैर्भाव्यं सत्सत् किञ्चित् अन्यतः स भवान् अचरत् घोरं यत् तव सुसमाहितः तेन खेतयसे नस्त्वं परसङ्गाम प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छद सर्वं सर्वज्ञ सकलेवरं सकले सकलेवर सकलेश्वर एतन्मे पृच्छद सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यदैवेदमहं बुद्ध्या अनुशासितः। ब्रह्मवाच सम्यक् कारणिकस्येदं वत्सेदे विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्यः भगवद्वेद्य दर्शने न अनृतं तव तश्चापि यदा मां प्रविशि मे नान्दतं तव तश्चापि यदा मां प्रविशि भोः अविज्ञाय परं मत्त यदावत्त्वं यदोहि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यदार्को अग्निर्यदा सोमो यदक्षग्रहतारकः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापदे अनुया विमोहिता विकत्तन्ते ममाहमिति दुर्दयः द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावजीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेद देवा नारायणङ्गजः नारायण परा लोकः नारायण परा मकाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि तुष्टते सस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः शुद्धं सुजामि सुष्टु अहम् इक्षयैव अविचोदितः सत्त्वरजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकरणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः वर्तन्ते नित्यता मुक्तं मायनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिर्येभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मण् सर्वेषमोगिच्छेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मनियथृच्छया प्राप्तं विभूषुरुपादते कालात् गुणव्यधिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महद पुरुषाधिष्ठितात् तबुत् महदस्थ विकुर्वाणात् रजसत्त्वब्रह्मिदात् तम प्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः स्व अहंकार इति प्रोक्तः विकुर्वन्न संवत्रितां वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि बोधादेत् विकुर्वाणात् तपुन्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दः लिङ्गं यत् दृश्ययोः नभसो अध विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शगुणो अनिलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राणवोजो प्राणवोज सहोपलं वायोरभि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपत्यते तेजो वै रूपवत् स्पर्श सप्तवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसितम्बो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवश्चाम्बो कोशवश्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसो गन्धवान् अभूत्
परान्वयत् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः वैकारिकान् मनो यज्ञे देव वैकारिका दश दिक्पादर्क प्रचेदो अस्ति वक्ष्णींत्र उपेंद्र मित्रकाः दैज सत् तो विघ्रवाणात् इंद्रियाणि दशा भवन्ने ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसौ श्रोत्रं त्वक् घ्राण त्वक् जिह्वा वाक्तोर्मेष्टांग्रि पायवः यदि असंगता भावा श्रोत्रं त्वक् घ्राण त्वक् जिह्वा वाक्तोर्म श्रोत्रं त्वक् घ्राण त्वक् जिह्वा वाक् दोर्मेष्टांग्रि पायवः वाक्दोर्मेष्टांग्रिपायवः यदि असंगता भाव बोधयंत्रिय मनोगुणः यदा यदन निर्माणेन शेखर ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य चान्योन्यम भगवच्छक्ति सुच्योदिताः सदसत्वम उपादाय चोभयम ससुजिष्यतः वर्षभोग सगर्षान्ते तदण्डम उदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्तु जीव अजीवम अजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मात् अण्डम निर्वेत्य निर्गतः सगसोर्वङ्ग्रि वाक्पक्षः सगस्रारण शीर्षवान् यस्य अवयविर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः हत्यादिभिरधस्तब्धः शब्दोत्पं जगणादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म शत्रुमे तस्य बाहवः पूर्ववैश्य भगवतः पत्यं सूत्र आप्यजायते भूलोक कल्पित पत्यं भूर्लोकस्य नापितः हृदय स्वर्लोक वरसा महर्लोको महात्मनः गिरिवायं जनलोकस्य दभोलोकः स्पदन् स्तनत्वयात् दभोलोकः स्तनत्वयात् मूर्तभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातनः तत्कर्त्यं चादलं क्लुप्तम ऊरुप्यां विदलं विभोः चाणुप्यं सुतरं सत्तं चंगाप्यं तु तलादलं महादलं तु गुल्पाप्यं प्रपदाप्यं रसादलं पादालं पादतलत इति लोकमय पुमान् भूर्लोक कल्पित पत्यं भूर्लोक अस्य नापितः स्वलोक कल्पित मूर्तना इति वा लोककल्पना। श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद। अथ षष्ठोऽध्यायः ब्रह्मोवाच वाचं अक्ष्णेमुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्ततादवः हव्यकव्य अमृत अन्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वास्वनं च वायश्च तन्नासेत् परमायने अस्मिन् च घ्राणोः मोद प्रमोदयोः रोबाणं तेजसं चक्षुर्दिवक् सूर्यस्य चाक्षिणी। कर्णदृशं च तीर्थानां श्रोत्रमाहाशब्दयोः तद्गात्रमस्तसाराणां सौभकस्यच्च भाजनं भकस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रमन्युद्भिज्य जादीनां यैर्वाजज्ञस्तु सम्प्रतः केशस्मश्रु नहान्यस्य शिलालोहप्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रम भूर्भुवस्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वगाम वरस्यापि हरेश्चरणः आस्पदम्। अवां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः वंशशिष्ण उपस्तस्तुः प्रजात्यानन्तं निर्वृतेः वायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्दयर्मृत्युर्निरयस्य गुदस्पृतः पराबोधिरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाद्यो नदीनामन्तु गोत्राणाम् अस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां बोधानां निधनस्य च वदनं विदितं पुंसो हृदयं मनसस्पदं धर्मस्य मम दुप्त्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव ते इमे मुनयो अग्रजाः सुरासुरनरा गगनागाः खगा मृगसरीसृपाः गान्धर्वाप्सरसो रक्षा रक्षो बोधगणोरगाः पशवपितरसिद्धा विद्याधरश्चारणाः अन्य च विविधा जीवा जलस्थलनभोगसः ग्रहक्षकेतवस्तारस्तडित स्तनयत्नवः अन्य च विविधा जीवा जलस्थलनभोगसः ग्रहक्षकेतवस्तारस्तडित स्तनयत्नवः सर्वं पुरुष ये वेदं बोधं भव्यं पपश्चेत् तेनेदमावृतं विश्वं विदस्तिमति तिष्ठति स्वदिष्टिं प्रदपन्न प्राणो बहिश्च प्रदपत्यसो एवं विराजं तपत्यन्तर्बहिः पुमान् स्व अमृतस्य अभयस्येसो मत्यमन्नं यतत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मण पुरुषस्य तुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अव्ययं त्रिमूर्त्नो अदायी मूर्तसु पादास्तयो बहिश्चासन् अप्रजानं य आश्रमाः अन्धस्त्रिलोक्यास्तवरो गृहमेधो अबृहद्व्रतः श्रुति विचक्रमे विश्वंग शासनानसने उभे यत्यवित्य च वित्य च पुरुषस्तु उभयाश्रयः
यस्मादण्डं विराट् यज्ञः भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यं मत्यगात् विश्वम गोभिः सूर्य इवादवन्ने यदास्य नाप्यान् नलिनादहमासम महात्मनः नाविदम यज्ञसंवारण पुरुषा अवयवा त्रिदे देशु यज्ञस्य वशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देव यजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तुन्योषधिय स्नेह रसलोह मृदो जलम् वस्तुन्योषधियः स्नेह रसलोहं मृदो जलम यजंसि सामान्य चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवदान क्रम कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च गदयो मदय श्रद्धः प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषा अवयवैर्येदे संवाद संप्रदामया इति संप्रद संवारः पुरुषा अवयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव अयजम् ईश्वरम् ईश्वरम् देनैवायजम् ईश्वरम् तदस्य भ्रातरयमेः प्रजानं पदयो नवः अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहितः तदस्य मणवकाले ईजिरे ऋषि अपरे पितृविबुधा दैत्य मनुष्य पृथिवीर्विभुम् नारायणे भगवति तैतं विश्वमाहितं विहितमायोर्गुणः सर्गादावगुणस्वतः सर्गादावगुणस्वतः सुजामि तन्नियुक्तो अहम हरो हरति तत्त्वसः विश्वं पुरुषरूपेण परिबाधि त्रिशक्तिदृक् इति ते अभिहितं दाद यदेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भाव्यं सतसतात्मकं न भारते मे मृषोपलक्षिते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकानि पतन्त्यसत्पदे यन्मे हृदोत्कण्ठ्य वदा त्रुदो हरिः सोऽहं समम्नायम् अयस्तपोमयः प्रजापतिनम् अभिवन्तितपदिः आस्तायोहं निगुणम समाहितस्तं नाट्यकच्चम यदा आत्मदं संभवः न तस्म्यहं चरणं समेयुषां भवच्चिदं स्वस्तेनं सुमङ्गलं यो आत्ममाया विभवं स्म पञ्चघात् यदा नवस्वान्तमदा परे कुतः नाहं न युयं यततां गतिं विदुः न वामदेव किमुदा परे सुरः तन्मय्या मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मिदं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतार कर्माणि कायन्ति ह्यस्मदातयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यवर्ष कल्पे सुजत्यचः आत्मा आत्मन्यात्मना संयच्छदित्यपादि च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं स सत्यं पूर्णमणात्यन्तं निर्गुणं नित्यमत्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रसन्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासु तर्कैस्थिरोदीयेत विप्लुतम् आद्य अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकार गुणगिन्तयानि विराट स्फराटस्थानस्तरुष्ण भूम्नः अहं भवयज्ञ यमे प्रजयसा तक्षादये भवदादयश्च स्वर्लोकपाल खगलोकपाल नृलोकपाल स्थललोकपालः गन्धर्व विद्याधरचारणेश ये यक्षरक्षोरक नागनादाः ये वा ऋषिणां वृषभ पृथॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रः अन्ये च ये प्रेत पिशाच बोध कुष्माण्ड यादव मृग पक्ष्यदेशाः यत्किञ्च किलोके भगवन् महस्पत् ओजसहस्पत् बलवत् क्षमावत् श्रीह्री विभूत्य आत्मवदत्पुदार्णं तत्त्वं परं रूपं वदस्वरूपं प्राधान्यतो यादृश आमणन्ति लीलावतारन् पुरुषस्य भुम्नः आवीयदं कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत् इमान् सुबेशान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां विदेस्कन्धे षष्ठाध्यायः शरणमशः श्री हरये नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंदा गोविंदा ரொம்ப நாளாச்சு பச்சு விட்டு அதனால டச்சு விட்டதுனால கொஞ்சம் அப்படியே தடுமாறுது வார்த்தை ராமா ராமா அப்பா இது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான சர்க்கம் ஏழாவது கஷ்டமான அத்தியாயம் ஏழாவது அத்தியாயம் அதாவது பகவான் அவதாரங்களை பத்தி பிரம்மதேவர் நாரதத்தில் வர்ணிக்கிறார் பிரம்மநாரத சம்பாதம் வந்திருக்கும் அது சப்தமாத்தியாய பிரம்மவாச்ச यत्रोत्यदक्षितलोत्तरणाय बिभ्रति क्रौडिं तनुं सकल यज्ञम् अयिम् अनन्तः आन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंशयात्रिमिव वज्रतरो दतार जातो रुजर अजनयत् सुयज्ञः आहुदिसूणुर् अमरानत दक्षिणायाम
लोकत्रयस्य महदिम अहरति यदातिम स्वयं भुवेन मनना हरि इत्यनुक्तः यज्ञस्य कर्तमगृहे त्वजते बहुत्यं स्त्रीभिः समनौभिरात्मगतिम स्वमात्रे ऊचे यया आत्मसमलं गुणसङ्गभङ्गम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रवेदे ऊचे यया आत्मसमलं गुणसङ्गभङ्गम् अस्मिन् गुणसङ्गभङ्गम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रवेदे अत्र अपत्यम् अभिकाङ्क्षत आह दुष्टो दत्तो मम मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देह योगतिमापुरभयं यदुहैहयात्यः तप्तं तपो विविधलोक शुश्रूषया मे आदौ सनात् स्वतपसः सदुसनो अभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयो यतसक्षदात्मनः धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नरैः स्पदव प्रभावः तस्मात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्फणङ्ग प्रदना कडिदुं न शेकुः कामं दहन्ति कृदिनो ननु दोषदृष्ट्या रोषं दहन्तं वदते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरम् अलं प्रविशन् बिभेति काम कदं न पुनरस्य मनश्रयेद् वित्त सपत्युदित पत्रिभिर् अन्तिराज्ञो बालो अभि सन्नुपकतस्तपसे वनानि तस्मादत् ध्रुवगतिम गणदे प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनियो यदुपर्यतस्तात् यत्पेनमुत्पद कदम त्वचवाक्यवज्रं विपृष्ट पौरुषभखं निरये पदन्तम त्रात्पार्थितो जगदिपुत्र वदं च लेभे दुक्ता वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभिरसौ ऋषभ आस सुदेवि सूनुः यो वै चचार समतृक् जडयोगचर्यां यत्पार्महंस्यं ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्र ममास भगवान् हयशीरसादो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिलदेवतात्मा वाचो बभूर्वसति स्वसुतो अस्यदस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुलोबलन्तः श्रोणीमयो निखिलजीवनिकायकेदः यस्संसितानुरूपये सरले महान्महे आदाय तत्र विजहारः देवमार्गन् क्षीरोदौ अमरदानव योधपाणम उन्मत्तताम अमृतलप्तया आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप उबुरे यदतार गोत्रम नेत्राक्षणो अत्रि परिवर्त कषाण कंडुः त्रैविष्टबोरपयः स नृसिंहरूपं कृत्वा प्रमत् बृहडितं करालतवक्त्रं तैतेन्द्रमाशु कदया अपि पतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विदधार नखैः स्फुरन्तं तैतेन्द्रमाशु गदयापि पतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विदधार नखैः स्फुरन्तम् अन्धसरस्य उर्बलेन पदे गृहीतौ प्राहेण यूतबधिर् अम्बुजहस्तहार्तः आहितमादिपुरुषाखिल लोहनाद तीर्थशव श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तम् अरुणार्तिनम् अप्रमेयं चक्रायुध पदकराज भुजातिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रकृष्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् कुणैरवरजो अप्यदिते सुदानम लोहान् विचक्रम विमान यददादि यज्ञः स्माम्बामणेन च गृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चां हृदे पदि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्तो बलिर् अयम् उरुक्रम पादशौचम् आब शिखा तदो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतं हृदयेन चिकित्सितन्यत् आत्मनमङ्क सरसा हरये अभिमेने तुभ्यं च नारद प्रशम भगवान् विवृत्तं भावेन साधु परिपुर्दुष्ट उवाच योगं मे ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्वदीपं यत्वासुदेव शरण विदुरञ्च सैव चक्रं स दिक्ष्पविहितं तशसु स्वदेजो मन्वन्तरेषु मन्वंसतरो बिभर्ति दुष्टेषु जातिषु तमं व्यददात् स्वकीर्ति सत्यत्रिपृष्ठ औषधिं प्रतिं चरित्रे धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्नां ऋणम पुरुषां रुज आसहन्ति यज्ञे च भागम् अमृतायुर् अवावरुन्त आयुश्च वेदम् अनुशास्त्यवदीर्य लोके शास्त्रं शयाय विधिनोपकृतं महात्मा ब्रह्म दृक् उचित पदम नरहातिलिप्सु वद्यं ससौ आवणिकण्टकं उग्रवीर्य त्रिशब्दकृत उरुदार परस्पतेन
अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश एक्ष्पाकवंश अवधीर्य पुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनम सतहितानुच आविवेश यस्मिन् विरुद्ध्य दशकन्धर आर्तिमार्चत् यस्मा अदत् उदितिरूढ भयाङ्कवेवो मार्गं सपत्य रुबलम हरवत् दितक्षोः दूरे सुहरन् मदितरोष सुषोण दृष्ट्यां तादप्यमाणम् अहरोरग नकरचक्रः अक्षस्थलस्पर्श रुक्णं महेन्द्रवाह तन्दै विडम्पित भगुप्चिष ऊढहासम सत्यो आसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्यस्फुर्जिते धनुष उच्चरदो अधिसैन्ये भूमे सुरेतर वरुद विमर्तितायाः केशव्ययाय कलया सिद्धकृष्णकेशः जाद करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि दोगेन जीवहरणं यदुलीगिकाया त्रैमासिकस्किच्च पद शकडो अववृत्तः यत्रिङ्गदान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं तितरदार्जुनयोर्न भाव्यम् यत्ते वृजवसुन् यशदोय वेदान् पाठं स्वजीव यत् अनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुत्तये अधिविषवीर्य विलोल जिह्वम् उच्चाडयिष्यत् उरगं विहरन् हरदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानम दावाक्लिना सचिवने परिदह्यमाणे उन्नेष्यति व्रजमदो अवसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो अनधिकं वीर्यः कृष्णीर यत् उपलबन्तम् अमुष्य मादा स्वल्पं सुतस्य नदतु तत् तदमुष्य मादि यच्छम्बद अस्य पदने भुवनानि श्रीगोपी संवीक्ष्य संकितमनाः प्रतिबोधिता आसीत् नन्तञ्च मोक्षति भयात् वर्णस्य पाशात् गोपान् बिलेषु विहितान् मयसूनना च अक्ष्ण्या प्रथम दिशि शयानम् अधिश्रमेण लोकं विकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलं स्म गोभिर्मखे प्रतिहदे भजविप्लवाय देव अभिवर्षति पशुन्न कृपया ऋचक्षुः तत्तो चिलीन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महित्रम् अनघैककरे सलिलम् क्रीडन् वने निशाकर रश्मिगौर्यां दासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेन उत्तिविदस्मररुजं भजभृत् वधूनाम् हर्तुर्हरिष्यति सजेशिरो धनदानगस्य ये च प्रलम्बकरदर्तुरकेशि अरिष्टं मल्लेव कंस यवना कुल कुजबौण्डकात्याः अन्य च साल्वक अभिबल्बल तन्दवक्त्र शब्दोक्ष संबर विदुरद रुक्मिमुख्याः एवं मृते समितिशालिन आत्तचापः काम्बोजमत्स्य उरुकैगय सृञ्जयात्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीम व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयं पालेन मिलितधियम् अपुमृश्य नॄणां स्तोकायुषां स्वनिकमो बददूरभारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदत्रमं विडपसो विभजिष्यति स्म देवत्विषां निगमपत्मनि निश्चितानां भूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्य दुर्भिः लोकान्तरं मदिविमोहम् अधिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यते औपधर्म्यं यर्ह्यालयेष्वपि सदां न हरे कदा स्युः पाखण्डिनो त्वजना वृषलान्द्रदेवः स्वाहा स्पता वषदिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलिर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपो अहं ऋषयो नव ये प्रचेषः स्थाने च धर्मं अनु अमरो अनीशाः अन्ते तु अधर्महरन् मन्यो वसासुरात्या हरमन्यो वसासुरात्या माया विभूतयैमा पुरुषक्तिपाजः विष्णोनु बीजकरणां कदमो अर्हतीह य पार्थिवाञ्जवि कविर्विभमे रजांसि चस्कं वय स्वरं हसस्कलता चस्कं वय स्वरं हसस्कलता त्रिपृष्ठं यस्मात् त्रिसाम्य सदनादुरु कंबयाणं नान्तं विदं अहममि मुनियो अक्रचास्ते
माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवरीये कायन गुणं दश साधारण आदिदेवः शेषो अधुनापि समवस्थ्यति नास्य भारं में येषं स एव भगवान् तय्ये तनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरमधितरन्ति च देवमायां नैषा ममाहिमिति दीहि स्वसृगालभक्ष्ये वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां योऽयं भवश्च भगवान् दैत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनश्च अदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिर्नुरुपुरङ्ग उदध्रुवश्च इक्ष्वाकुरायलं मुचुकुन्द विदेहकादि रघु अम्बरीष सकर गयनाहुषात्यः मांत्र तड़र्क सदतन्मनु नंदिदेवा देवव्रतो बलिरमूर्तयो दिलीपः सौभर्युदंक शिपिते बल पिप्पलाद सारस्वतोत्तप पराशर पूरिषेणः जयन्त्य विभीषण हनुमत् उपेन्द्र दत्त पाताशिषेण विदुरश्रुत देववर्याः देवै विदन्त अधितरन्ति च देवमायां स्त्रीसूत्र हूण सबरा अभिपापजीवाः स्त्रीसूत्र हूण सबरा अभिपापजीवः यत्यद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षा दीर्घ अभिकिमु सुतधारणाये सस्वस्वसन्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सततः परमात्मतत्त्वं सप्तोणयत्र पुरुष सप्तोणयत्र पुरुषारगवान् क्रियार्थो माया परिधि अभिमुखे च विलज्जमाना तत्त्वै पदं भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यत् विदुरजस्र सुखं विशोगं विदुरजस्र सुखं विशोगं सत्रियंग नियम्य यतिको यमखत्त हेदिं जह्योस्फराडिव निबाण गणित्रमिन्द्रः सश्रेयसमपि विभुर्भगवान् यदो अस्क्यं भाव स्वभाव विहितस्य सदप्रसिद्धिः देहे स्वदादु विकमे अनुविषिद्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विसिर्यते अजः स्वयं दे अभिहितस्ताद भगवान् विश्वभावनः समासेन हरे नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्च यत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संकर्षो अयं विभूतिनां त्वमेतत् विपुलीकुरु अदा यदा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे यदि संकल्प्य वर्णय माया वर्ण्यते अवश्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वत सत्तया नित्यं माया आत्मा न मुह्यति श्री हरे नमः श्री नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद அப்பா இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப கஷ்டம். இந்த பிரம்மதேவர் சொல்றதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். இந்த பிரம்மதேவர் இது பண்றதெல்லாம் ஸ்துதியெல்லாம் கூட கஷ்டமா இருக்கும். பிரம்மதேவர் ஸ்துதி கஷ்டமா இருக்கும். பிரம்மதேவர் சொல்றதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். இந்த பாகவத்துல பார்த்தா கரடு முரடா இருக்கும். அதான் படிக்கணும். பகவான் அனுகிரகம் தான் படிக்கலாம். ஏதாவது தப்பு இருக்கலாம். தப்பு இருந்தா கூட பகவான் ராமராமன்னு சொன்னா அது பரிகாரமாயிடும். தப்பு சரி பண்ணிடும். அதான் பகவான் பார்த்துப்பான். நம்ம பாராயணம் பண்ணுறது வேண்டியது மட்டும் தான் வேலை. சரி, இதோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம். இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம